Hi everyone, welcome to the session. In this session, we are going to continue with the load balancing solutions. So, let's get started. Let me open the Word. See, so far, what we have discussed, we are in the series of load balancing solutions. And under the load balancing solutions, the first load balancing solution that we discussed was Azure Load Balancer, or you can also call it load balancer. Then the second load balancer that we have is application gateway. Then the third one would be the traffic manager. And then we have the front door and CDN. So we are going to discuss these four load balancers in Azure one by one. And so far we have completed the Azure load balancer. अभी तक Azure load balancer हमने कर लिया है. If in case you have not seen my last video for Azure load balancer, then you can just go to the playlist and you can watch the last video. You will have the good idea about it कि load balancer क्यों use करते हैं, कैसे काम करता है. Then there are components of load balancer. We had discussed about inbound net translation. We had discussed about the outbound connection. So practically बहुत अच्छे से हमने इसका implementation देखा था. Now today we will be focusing on the application gateway. This will be our topic of the day. So let's get started. See, if you search about the application gateway into the official document of Microsoft. अगर आप Microsoft के official document में जाते हो and if you search what is Azure Application Gateway, so here you will see Azure Application Gateway is a web traffic OSI layer 7 load balancer that enables you to manage traffic to your web applications. Now, what does it mean? So let me give you the overview. What does happen? See, here I have one of the picture. यहाँ पे एक picture है. See, होता क्या है when we talk about the web applications, कंपनी में जब कभी भी हम web applications की बात करते हैं, so whenever we talk about web applications are just like your, let's say, any portal you have in company or any application that you have in your company that you are accessing using the browser. ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जो आजकल ब्राउजर पे एक्सेस हो पाता है, that is web application. For example, your YouTube is one of the web application, your team viewer is one of the web application. कंपनी में आपके जो टिकटिंग पोर्टल्स होते हैं दे आर द वेब एप्लीकेशंस. आपके अटेंडेंस पोर्टल जो कंपनी में होते हैं दे आर आल्सो वेब एप्लीकेशन. सो आज की डेट में whatever software we are able to access using the browser, that is our web applications. Even the OTT platforms that we use like Netflix, Disney Hotstar, ये सारे के सारे वेब एप्लीकेशंस ही है. क्योंकि इनको आप क्या करते हो, एक यूआरएल के थ्रू एक्सेस करते हो. यू एंटर द यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड यू आर एबल टू यूज इट. इवन द application that I am using right now, the Miro application, for the purpose of writing something, this is also one of the web application. ये भी एक web application है. आपने देखा है मैंने इसको URL के थ्रू एक्सेस कर रखा है यहाँ पे, एंड आई एम लॉग्ड इन विद माय यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड आई एम एबल टू यूज इट. सो कंपनी में क्या होता है, बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस होती है और कुछ एप्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है. सम एप्लीकेशंस आर बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस. And definitely in those scenarios, the load balancing is highly required. लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, जो भी बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती है दे विल बी इन द क्लस्टर. वो हमेशा क्लस्टर में होती है और उनके साथ एक लोड बैलेंसर हमेशा अटैच होता है, सो दैट द सर्वर डज नॉट गेट हेवी लोड. सर्वर पे ज्यादा प्रेशर ना हो. अगर सर्वर पे लोड आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मल्टीपल सर्वर्स के बीच में. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन गेटवे, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लोड बैलेंसर इन एज्योर. ये भी एक लोड बैलेंसर का ही टाइप है, बट ये किस टाइप का लोड बैलेंसर है? सो अगर आपके क्लस्टर में, लेट्स से आपके पास क्लस्टर है एंड उसमें 4 सर्वर्स है, लेट्स से मेरे पास 4 वर्चुअल मशीन्स है और इनके ऊपर मेरे वेब एप्लीकेशंस चल रहे हैं. अब रिक्वायरमेंट ऐसी आई, वेब एप्लीकेशन का कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसमें, लेट्स से, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ए सिनेरियो ऑफ गूगल पे एप्लीकेशन. अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, गूगल पे. मान लो गूगल पे की एप्लीकेशन चल रही है आपके सर्वर्स के ऊपर. अब गूगल पे में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. लाइक एज ए नॉर्मल यूजर वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन गूगल पे. हम गूगल पे के थ्रू आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल,
we are sending the payment to someone, we are scanning it and we can make the transaction. So गूगल पे आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर द गूगल पे. बट गूगल पे का एक ऐसा सेक्शन है, लेट्स से गूगल पे का एक ऐसा सेक्शन है विच इज लेट्स से पेमेंट गेटवे. वो एक पेमेंट गेटवे है जहाँ पे हम स्कैनर ओपन करते हैं, सामने वाले के स्कैनर के क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं एंड वी मेक द पेमेंट. दिस इज व्हाट वी डू. सबसे ज्यादा काम गूगल पे उसी वाले सेक्शन में होता है. तो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज टू मच बिजी. वो बहुत ज्यादा बिजी सेक्शन है. अब वो वाला जो सेक्शन है गूगल पे का जहाँ पे हम क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं किसी को, उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के पेज को, मतलब उस ट्रांजैक्शन वाले पेज को, उस स्कैनिंग वाले पेज को हमें एक पावरफुल सर्वर पे होस्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल मैंने उसको यहाँ पे होस्ट कर दिया. मतलब हमें उसको ऐसे पावरफुल सर्वर पे होस्ट करना चाहिए जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, वो ज़्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके. तो दिस हैपन्स नाउअडेज बिकॉज ऑफ द माइक्रो सर्विसेज, दीज थिंग्स हैपन्स. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं डॉकर की, क्यूबरनेटीज की, सो वो यही सब काम कराने में आपको हेल्प करते हैं. बट सिनेरियो इज, कई बार देखा होगा आपने, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर लेट से मुझे कोई साइट एक्सेस करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास उसका एक यूआरएल होता है और मैं उसको बुकमार्क करके रख लेता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये वाला पेज ओपन करना हो, तो जनरली अगर मैं नॉर्मल तरीके से जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, learn.microsoft.com को टाइप करूंगा. दिस इज द यूआरएल ऑफ द एक्चुअल साइट. तो मैं learn.microsoft.com टाइप करके एंटर करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट जाएगी इस पर्टिकुलर सर्वर पे. इसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे सर्च करना पड़ेगा एज्योर डॉक्यूमेंटेशन. फिर मैं यहाँ जाऊंगा. फिर मैं यहाँ जाने के बाद देन आई हैव टू सर्च फॉर द एप्लीकेशन गेटवे टॉपिक. तो मे बी वो नेटवर्किंग के अंदर मुझे मिलेगा. फिर मैं नेटवर्किंग में आऊंगा, फिर मैं एप्लीकेशन गेटवे में आऊंगा. देन मैं यहाँ पे आके सर्च करूंगा व्हाट इज एप्लीकेशन गेटवे. तब जाके ये पेज मेरा ओपन होगा. सो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस. इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है. मतलब एक तो टाइम भी खराब हो रहा है, दूसरा द पीपल विल फील लाइक ए बोर, कि यार एक पर्टिकुलर पेज मेरे को देखना है, मुझे पढ़ना है या मुझे एक्सेस करना है और मुझे इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है. सो हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक अवर वर्क इजी, जनरली हमारे पास हैबिट होती है कि हम या तो इसको बुकमार्क करके रख लेते हैं, लाइक वी विल जनरली कीप इट एज ए बुकमार्क. हमने इसको बुकमार्क करके रख लिया. या फिर हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, हम इसका यूआरएल अपने पास कॉपी करके कहीं पे रख लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी लेट्स से कीप इट इन वन ऑफ द डॉक्यूमेंट. हमने ये यूआरएल रख लिया. अब फ्यूचर में कभी भी मुझे ये वाला पेज एक्सेस करना होगा तो मैं इतना लॉन्ग प्रोसेस फॉलो नहीं करूंगा. मैं learn.microsoft.com पे जाके सर्च नहीं करूंगा. आई विल हैव दिस यूआरएल विद मी. मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा और इस एड्रेस को सीधा यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, देन एंटर. Oh, I did not copy it properly. Wait, let me open the application gateway again. सी, सो मैं जनरली क्या करूंगा, मैं इस यूआरएल को कॉपी करके अपने पास रख लूंगा. एंड वेन एवर आई नीड इट वी कैन जस्ट एंटर दिस यूआरएल एंड वी कैन जस्ट पेस्ट एंड इट विल गेट ओपन. इस तरीके से ओपन हो जाएगा. तो जब कभी भी मुझे एक्सेस करना हो, मैं सीधा इस लिंक पे क्लिक करूंगा, इट इज वन ऑफ द हाइपर लिंक, और वो यूआरएल ओपन हो जाएगा. या तो मुझे अगर यूआरएल चाहिए, मैं इस पे कंट्रोल प्रेस करके इसका यूआरएल निकाल के, ये यूआरएल है पूरा का पूरा, आप देख पा रहे हो, इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट करो, देन इट विल गेट ओपन. तो जनरली कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी मुझे कोई वेब एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट का पर्टिकुलर पेज एक्सेस करना होता है, तो मैं उसके यूआरएल को या तो कॉपी करके रख लेता हूँ, और जब कभी भी मुझे उसको एक्सेस करना होगा मैं उस यूआरएल को सीधा हिट करूंगा, द साइट विल गेट एक्सेसिबल टू मी. या फिर मैं उसको बुकमार्क करके रख लूंगा, जब कभी भी मुझे इस साइट को ओपन करना होगा मैं इस पर्टिकुलर बुकमार्क पे जाऊंगा और इस पेज को ओपन कर लूंगा. तो लॉन्ग प्रोसेस में फॉलो नहीं करता. सिमिलरली सिमिलरली कंपनी में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है. मान लो कि आपकी एक बड़ी साइट है, मतलब कंपनी के पास एक पोर्टल है. अब उस पोर्टल पे क्या हुआ, उस पोर्टल पे, मतलब उस पोर्टल का नाम है लेट्स से contoso.com. एक पोर्टल है, एक वेब एप्लीकेशन है कंपनी की जिसका नाम है contoso.com. अब इस contoso.com में बहुत सारे सेक्शंस है. मान लो इस contoso.com से अटेंडेंस भी लगती है, मतलब अटेंडेंस का पोर्टल भी कंपनी ने इसी में डाल रखा है. और लेट मी टेक ए टेक्स्ट बॉक्स. मान लो कंपनी ने अटेंडेंस का पोर्टल भी इसी साइट के ऊपर अपलोड कर रखा है. फिर कंपनी ने लेट से
द टिकटिंग टूल जो है, टिकटिंग टूल का लिंक भी इसी के ऊपर इंटीग्रेट कर रखा है। कंपनी का जो भी टिकटिंग टूल है, फॉर एग्जांपल सर्विस नाउ है, तो उन्होंने इसी के ऊपर इंटीग्रेट कर रखा है। इसके अलावा मान लो उन्होंने अपनी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन, वो भी इसी पोर्टल के ऊपर अपलोड कर रखा है। इसके बाद contoso.com में ही मान लो उन्होंने कोई एसओपी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं, मतलब बहुत कुछ अपलोड कर रखा है इस पूरी साइट के ऊपर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन यू कैन से, फॉर एग्जाम्पल। नाउ, अब जो लोग, जिन लोगों को अटेंडेंस लगानी है, लेट्स से बहुत सारे एम्प्लॉयज है कंपनी के, और उनको अपनी अटेंडेंस अपडेट करनी होती है अटेंडेंस पोर्टल के ऊपर। तो जिनको अटेंडेंस लगानी है, उनके पास क्या तरीका है, या तो वो इस साइट पे जाए। दिस साइट इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट इमेजेस। सो इसको ये मत सोचना कि ये ओरिजिनल में इन्हीं सब चीज़ों के लिए, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। तो मान लो जिसको अटेंडेंस लगाना है, उसके पास क्या तरीका है, वो इस साइट पे जाएगा। इस साइट पे जाके वो अटेंडेंस पोर्टल का लिंक ओपन करेगा, देन वो लॉग इन करके अटेंडेंस लगाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यूजर के पास उस अटेंडेंस पोर्टल का डायरेक्ट यूआरएल है। डायरेक्ट यूआरएल का मतलब है मे बी कि वो जो साइट है हमारी contoso.com, वो कुछ इस तरीके से उसके पास यूआरएल है, contoso.com/attendance। आपने देखा होगा जो भी कस्टम यूआरएल्स होते हैं, मतलब जो भी हमारे पर्टिकुलर पेज के यूआरएल होते हैं, उनके यूआरएल में थोड़े से चेंजेस होते हैं बिकॉज दे आर कस्टम। जैसे अगर मैं यहाँ पे learn.microsoft ओपन करूँ, दिस इज द मेन यूआरएल, ये एक मेन यूआरएल है, ये मेन है। अब इसके अंदर अगर मैं जाके एज्योर डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो लिंक में यूआरएल में चेंजेस आ रहे हैं। तो जो पेज मैं ओपन करते जाऊंगा, उस पर्टिकुलर यूआरएल में चेंजेस आएंगे। इवन अगर मैं अब जाके यहाँ से लेट्स से नेटवर्किंग के अंदर में गया, तो यहाँ पे नेटवर्किंग, देन मैं एप्लीकेशन गेटवे में गया, तो अगेन यूआरएल में चेंज, और अगर मैंने व्हाट इज एप्लीकेशन गेटवे ओपन किया, तो यूआरएल में चेंज। तो ये एक कस्टम यूआरएल है जो टाइम टू टाइम जिस वेब पेज को हम ओपन करते हैं, उसी वेब पेज के हिसाब से चेंज होते जाता है। तो मान लो यूजर के पास एक कस्टम यूआरएल है contoso.com/attendance, जिसको डायरेक्टली वो एक्सेस करके अटेंडेंस पोर्टल पे जाता है, और वहां पे जाके वो लॉग इन करके अपनी अटेंडेंस हिट करता है। सिमिलरली अगर किसी को टिकटिंग पोर्टल पे जाना है, तो वो इस साइट पे जाने की बजाय उसके पास सीधा यूआरएल होगा, वो क्लिक करेगा और उस पे चले जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे का काम आता है। सो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज द यूज केस ऑफ एप्लीकेशन गेटवे। तो होता क्या है, जब भी कोई यूजर कोई पर्टिकुलर यूआरएल लेके आता है, वेन एवर एनी यूजर कम्स विद ए पर्टिकुलर कस्टम यूआरएल, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, किसी को अटेंडेंस पोर्टल ओपन करना है, तो वो अपना अटेंडेंस का यूआरएल लेके आया। अब होगा क्या, एज ए यूजर, जब भी मेरे पास कोई पर्टिकुलर यूआरएल होगा और मैं उस यूआरएल को लेके आया, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 सर्वर है मेरे बैकएंड में, मेरे पास 4 सर्वर लगे हुए हैं, और इन चारों में contoso.com की ही वेब एप्लीकेशन चल रही है। बट मैंने क्या कर रखा है, इस पर्टिकुलर सर्वर में contoso.com का इमेज वाला जो वेब पेज है वो अपलोड कर रखा है। मतलब किसी को अगर इमेज की रिक्वायरमेंट होगी, इमेज वाला पेज एक्सेस करना होगा, तो इस सर्वर से और इस सर्वर से एक्सेस होगा। तो इन दो सर्वर पे, विच इज कॉल्ड पूल, पूल का मतलब है कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, तो मैंने इन दो सर्वर्स पे इमेजेस वाला जो वेब पेज का वेब एप्लीकेशन का जो पेज है वो अपलोड कर रखा है। और जो नीचे के जो दो सर्वर्स है, ये वाले, इन पे मैंने वीडियो वाला पर्टिकुलर वेब पेज अपलोड कर रखा है फॉर माई contoso.com एप्लीकेशन। सो इन टोटल मेरे पास 4 सर्वर है। इन चार में से दो सर्वर्स के ऊपर वेब एप्लीकेशन का इमेज वाला पेज अब अवेलेबल है, और इन दो सर्वर्स पे वीडियो वाला पेज अवेलेबल है। अब नाउ द कंडीशन इज, अगर कोई यूजर आया, मान लो कोई यूजर आया, लेट से ये यूजर आता है, और इस यूजर ने एक यूआरएल एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल contoso.com/images/default.html, जो कि एक यूआरएल है, उसके पास साइट का नाम है। तो वो एक कस्टम यूआरएल एंटर करता है। जैसे ही वो एक कस्टम यूआरएल एंटर करता है, तो मैंने इसके बीच में एक एप्लीकेशन गेटवे लगा रखा है, विच इज लाइक ए लोड बैलेंसर। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, यूजर कभी भी सर्वर्स पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं करता, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, बिकॉज ऑफ हाई अवेलेबिलिटी रीजन। यूजर क्या करता है, हमेशा रिक्वेस्ट करेगा आपके लोड बैलेंसर पे। तो लास्ट सेशन में हमने एजोर लोड बैलेंसर लगा रखा था, बट इस टाइम पे हमने क्या लगा रखा है, एप्लीकेशन गेटवे। सो यूजर क्या करेगा, जब उसको ये वाला पर्टिकुलर पेज एक्सेस करना होगा वेब एप्लीकेशन का, तो वो इस यूआरएल
से रिक्वेस्ट सेंड करेगा, मतलब ये यूआरएल वो एंटर करेगा अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। रिक्वेस्ट उसकी कहाँ जाएगी? एप्लीकेशन गेटवे पे। नाउ एप्लीकेशन गेटवे चेक करेगा कि ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल में लेट से इमेजेस यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है, मतलब उसको इमेजेस वाले पेज की रिक्वायरमेंट है। उसने कस्टम यूआरएल एंटर किया है इमेजेस से रिलेटेड, तो उसको इमेजेस की रिक्वायरमेंट है। अब एप्लीकेशन गेटवे लोड बैलेंसर चेक करेगा कि मेरे बैकएंड पूल में 4 सर्वर्स है और चारों के चारों एक्टिव कंडीशन में है, बट इन चारों में से कौन सा ऐसा सर्वर है जो इमेजेस का वेब पेज यूजर को अवेल करवा सकता है, मतलब प्रोवाइड करवा सकता है। तो अब एप्लीकेशन गेटवे ने देखा कि ये 2 सर्वर्स हमारे पास है जो इमेजेस से रिलेटेड है, इनके पास इमेजेस के वेब पेज है, और जिसमें से ये वाला सर्वर अभी अवेलेबल है, फ्री है। तो एप्लीकेशन गेटवे ने रिक्वेस्ट को उठा के ट्रांसफर कर दिया इस पर्टिकुलर सर्वर पे। अब इस सर्वर के थ्रू यूजर को इमेजेस वाला पेज मिल जाएगा। दिस इज द जॉब ऑफ एप्लीकेशन गेटवे। अब कोई यूजर आता है, लेट्स से कोई यूजर आया और उस यूजर की रिक्वायरमेंट है दैट उसको वीडियो वाले पर्टिकुलर वेब पेज पे जाना है। तो उस यूजर ने क्या करा? उस यूजर ने रिक्वेस्ट डाली, उसके पास एक कस्टम यूआरएल था contoso.com/, उसके यूआरएल में था वीडियोस, देन साइट का नेम default.html। और ये यूआरएल्स उनके पास उन्होंने सेव करके रखे हुए हैं, लेट्स से बुक मार्क करके रखे हुए हैं। उसने क्लिक किया, जैसे ही उसने यूआरएल पे हिट किया, उसकी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन गेटवे पे आई। एप्लीकेशन गेटवे ने चेक किया कि ये यूआरएल में वीडियोस मांग रहा है, मतलब इसको वीडियोस वाला पेज चाहिए। तो उसने उठा के उस सर्वर पे फॉरवर्ड किया रिक्वेस्ट को जहां पे वीडियोस के वेब पेजेस होस्ट किए गए हैं, जहां पे वीडियोस वाले पेज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे उसने उसको राउट कर दिया। तो इससे क्या होगा? यूजर को वीडियोस वाला पेज मिल जाएगा। दिस इज द जॉब ऑफ एप्लीकेशन गेटवे। तो ये काम होता है एप्लीकेशन गेटवे का। अब एप्लीकेशन गेटवे दोबारा डिस्कस करते हैं हम क्या करता है। तो अभी तक हमने समझा कि एप्लीकेशन गेटवे का काम होता है किसी भी यूजर की रिक्वेस्ट जो कि कस्टम यूआरएल से रिलेटेड है, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के बाद चेक करना कि ये यूजर किस टाइप की रिक्वायरमेंट कर रहा है। अगर उसने बोला कि मेरे को इमेजेस चाहिए, उसके यूआरएल में इमेजेस है, तो उसको इमेजेस वाले सर्वर पे फॉरवर्ड करना। अगर उसने बोला मुझे वीडियोस वाला पेज एक्सेस करना है, तो वीडियोस सर्वर पे फॉरवर्ड करना। सिमिलरली अगर कोई दूसरा यूआरएल होता, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस करना है, टिकटिंग पोर्टल करना है, या अटेंडेंस पोर्टल एक्सेस करना है, तो यूआरएल में जैसा भी उस टाइम पे कंटेंट होगा, उससे रिलेटेड जो भी हमारा सर्वर बैकएंड में है हमारे पास, उस पे फॉरवर्डिंग करने का काम एप्लीकेशन गेटवे का है। सो एप्लीकेशन गेटवे इज ए लोड बैलेंसर अवेलेबल इन एज्योर। एज्योर के अंदर पाए जाने वाला ऐसा लोड बैलेंसर जो कि ओएसआई की लेयर 7 पे काम करता है। एप्लीकेशन गेटवे लेयर 7 पे काम करता है। लेयर 7 मतलब एप्लीकेशन लेयर। आप लोगों ने ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा। सो एप्लीकेशन लेयर इज द 7th लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, और उसी लेयर के ऊपर क्या काम करता है? हमारा एप्लीकेशन गेटवे। जो हमने लास्ट टाइम एज्योर लोड बैलेंसर देखा था, वो लेयर 4 विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर, उस पे काम करता था। और एप्लीकेशन गेटवे किस लेयर पे काम करता है? लेयर 7 पे, विच इज एप्लीकेशन लेयर। तो इसका काम क्या होता है? ये एक इंटेलिजेंट लोड बैलेंसर माना जाता है। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं एज्योर लोड बैलेंसर से, तो इट इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट लोड बैलेंसर एज कंपेयर टू द एज्योर लोड बैलेंसर। तो इसको इंटेलिजेंट लोड बैलेंसर बोलते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ये एक इंटेलिजेंट लोड बैलेंसर है। ये क्यों इंटेलिजेंट लोड बैलेंसर है? क्योंकि अगर किसी यूजर ने कोई रिक्वेस्ट रेस की और उसके पास एक कस्टम यूआरएल है, जैसे अभी मैंने आपको कस्टम यूआरएल के बारे में बताया कि अगर वो इमेजेस लेके आ रहा है या वीडियोस का यूआरएल लेके आ रहा है, तो पर्टिकुलरली उसी सर्वर पे फॉरवर्ड होगा। तो अगर कोई यूजर कस्टम यूआरएल लेके आता है, फॉर एग्जांपल contoso.com/images, तो ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये उस यूआरएल को रीड करके, मतलब उस यूआरएल को समझ के, और उसी से रिलेटेड पर्टिकुलर सर्वर जो हमारे बैकएंड पूल में है, जो हमारे लोड बैलेंसर से कनेक्टेड है, जो एप्लीकेशन गेटवे से कनेक्टेड है, उस पे फॉरवर्ड करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये इंटेलिजेंट है। और ये करता क्या है? ये करता है हमेशा पाथ बेस्ड राउटिंग। इस तरीके की राउटिंग को हम कहते हैं पाथ बेस्ड या यूआरएल बेस्ड राउटिंग। मतलब आपके कस्टम यूआरएल को देखते हुए, समझते हुए, उस
यूआरएल के बेसिस पे रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर सर्वर पे फॉरवर्ड करना, जैसे इमेज मांगा गया है तो इमेज के सर्वर पे फॉरवर्ड करना, और अगर वीडियोस के पेज की रिक्वेस्ट है तो वीडियोस के सर्वर पे फॉरवर्ड करना, इस पूरे प्रोसेस को पाथ बेस्ड राउटिंग या यूआरएल बेस्ड राउटिंग बोलते हैं। सो बेसिस ऑन द यूआरएल द एप्लीकेशन गेटवे इज गोइंग टू डू द राउटिंग, इट इज गोइंग टू ट्रांसफर द रिक्वेस्ट टू ए पर्टिकुलर सर्वर। तो ये यूआरएल के बेसिस पे काम करता है, जैसा कस्टम यूआरएल आएगा उसी के अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा, और उसी को पाथ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम यूआरएल में पाथ ही तो डिफाइन कर रहे हैं। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया पाथ स्लैश इमेजेस चाहिए मुझे, तो वी आर डिफाइनिंग ए पाथ। तो ये पाथ बेस्ड या यूआरएल बेस्ड राउटिंग करता है, इसलिए ये इंटेलिजेंट भी है, इट कैन अंडरस्टैंड द कस्टम यूआरएल। और अगर हम लोड बैलेंसर की बात कर रहे थे तो वो ऐसा यूआरएल अंडरस्टैंड नहीं करता, वो आपके आईपी हेडर, सोर्स का आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी और पोर्ट डिटेल्स, उसके बेस पे वो लोड बैलेंसिंग करता है। बट ये इंटेलिजेंट है, इट इज समहाउ इंटेलिजेंट, क्योंकि ये यूआरएल को समझ के एक पर्टिकुलर सर्वर पे फॉरवर्ड करके देन लोड बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो दिस इज हाउ द एप्लीकेशन गेटवे वर्क्स। अब एक बार जरा माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में समझता है कि क्या लिखा हुआ है। तो सी, इन्होंने भी मेंशन किया है कि इट इज अ वेब ट्रैफिक लेयर 7 लोड बैलेंसर, मतलब कि ये लेयर 7 पे काम करने वाला एक वेब ट्रैफिक लोड बैलेंसर है, जो आपके वेब एप्लीकेशन के ट्रैफिक को मैनेज करता है। और ये आपके नॉर्मल जो लोड बैलेंसर है, जो एज्योर लोड बैलेंसर है, जो कि लेयर 4 पे काम करता था और टीसीपी एंड यूडीपी को सपोर्ट करता था, जिसमें वो सोर्स का आईपी और पोर्ट वगैरह देख के और डेस्टिनेशन का आईपी और पोर्ट देख के लोड बैलेंसिंग करवाता था, ये उसकी तरह काम नहीं करता। ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ यूआरएल एंड होस्ट हेडर। सी, ये यूआरएल के बेसिस पे काम करता है, और ये क्या करवाता है, पाथ बेस्ड राउटिंग, जैसा कि मैंने बताया। तो ये आपके यूआरएल को चेक करता है, आपकी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, मतलब आपने जो भी यूआरएल डाला उस यूआरएल को ये चेक करके देन अकॉर्डिंग टू द यूआरएल इट विल टेक द डिसीजन। सो इट कैन राउट द ट्रैफिक, इनकमिंग ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक एप्लीकेशन पे गेटवे पे आता है वो उसको ट्रांसफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ यूआरएल। अगर यूआरएल में इमेजेस है तो इमेजेस वाले सर्वर पे भेजेगा, और अगर वीडियोस है तो वीडियोस वाले सर्वर पे भेजेगा। सो अगर इमेजेस के हमने मल्टीपल सर्वर्स लगा रखे हैं तो उसको हम पूल बोलते हैं, इमेजेस सर्वर का पूल, और अगर वीडियोस के मल्टीपल सर्वर्स है उनको वीडियोस सर्वर का पूल बोलते हैं। सो ये सारे सर्वर्स जो हमारे बैकएंड में कनेक्टेड है, जैसे कि लोड बैलेंसर की थ्योरी थी, हम उसको बैकएंड पूल बोलते थे, यहाँ पे भी हम इन सर्वर्स को बैकएंड पूल ही बोलते हैं। और ये सारे सर्वर्स किससे कनेक्टेड होते हैं, एप्लीकेशन गेटवे के साथ। अब एप्लीकेशन गेटवे क्योंकि बहुत क्रिटिकल है, इट इज अ क्रिटिकल रिसोर्स, क्योंकि सारे के सारे यूआरएल यहीं से बाईपास होते हैं। यूजर जब भी कोई रिक्वेस्ट ट्रेस करता है तो वो एप्लीकेशन गेटवे पे आके हिट करता है, और उसी के थ्रू वो बैकएंड सर्वर पे फॉरवर्ड होते हैं, राइट। तो इट मीन्स इट इज वेरी क्रिटिकल। और अगर ये गलती से इसको किसी ने हैक कर लिया या फिर इसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, सो देयर कैन बी रिस्क। अगर किसी ने इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन गेटवे को कंट्रोल में ले लिया, सो जो भी यूजर यूआरएल सेंड करते हैं वो एप्लीकेशन गेटवे पे आएगा, बट हैकर क्या कर सकता है, उस पूरे के पूरे यूआरएल को बैकएंड सर्वर पे बाईपास ना करके वो अपने खुद के एक सर्वर पे बाईपास कर सकता है, और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टील कर सकता है, मतलब हैक कर सकता है। यूजर जो भी पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा वो हैक हो सकता है। सो देयर आर चांसेस ऑफ सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो इसकी सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी क्रिटिकल रिसोर्स। इसी वजह से पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट ने, एज्योर ने क्या किया है, एप्लीकेशन गेटवे को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल नाम का रिसोर्स दे रखा है। सो इफ यू वांट टू पर्टिकुलरली सिक्योर योर एप्लीकेशन गेटवे यू कैन यूज द वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। सो वेब या वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिक्योर द एप्लीकेशन गेटवे फ्लो। और ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का जो टॉपिक है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, हम इसको समझेंगे प्रैक्टिकली कि ये कैसे काम करता है। अभी के लिए वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इज अ रिसोर्स इन एज्योर विच इज यूज टू प्रोटेक्ट द एप्लीकेशन गेटवे, ये एप्लीकेशन गेटवे की सिक्योरिटी का काम करता है। तो अभी तक की थ्योरी आई होप इट हैज बिन क्लियर टू एवरीवन। नाउ नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज इट इम्प्लीमेंट, ये कैसे काम करता है, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एजोर लोड बैलेंसर से हटके है। और जब मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी में बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस चल रहे होते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली एप्लीकेशन गेटवे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द एजोर लोड बैलेंसर। एजोर लोड बैलेंसर
थोड़ा रेशियो में कम यूज होता है एज कम्पेयर टू द एप्लीकेशन गेटवे। ये ज्यादा यूज होता है क्योंकि बहुत ज्यादा साइट्स, एप्लीकेशन एंड पोर्टल्स कंपनी के चल रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन गेटवे मतलब आई वुड से कि जितने भी लोड बैलेंसिंग सॉल्यूशंस है एज्योर के, आपके सारे स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक द इंटरव्यू एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कंपनी। क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करना इज अ डिफरेंट थिंग एंड टू सर्वाइव इन द कंपनी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इंटरव्यू तो फिर भी यू कैन जस्ट क्रैम अप सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एंड इफ यू हैव कॉन्फिडेंस somehow you will be able to crack it. But once your job is there, once you will join the company, it will be difficult for the people to survive if their fundamentals are not clear, if their practical skills are not there. So always focus on the fundamentals. इंटरव्यू में हमेशा फंडामेंटल्स ही काम आएंगे। तो फंडामेंटल्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, प्लस प्रैक्टिकल स्किल्स आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। देन द कॉन्फिडेंस। इफ यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स, नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट सेलेक्टेड एंड टू सर्वाइव इन द कंपनी। नाउ सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ इट। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो इसके प्रैक्टिकल के लिए व्हाट वी नीड, व्हाट आई विल बी डूइंग। सो सबसे पहले तो मैं एज्योर पे, इन माय एज्योर पोर्टल, आई विल बी क्रिएटिंग टू वर्चुअल मशीन्स। मैं दो वीएम्स बनाऊंगा। लेट मी इंक्रीज इट। तो मैं दो वीएम्स बनाऊंगा और फर्स्ट वीएम जो मेरी होगी उसका नाम होगा वेब सर्वर 01 या वेब सर्वर -01। इट विल बी लेट्स से इन ए पर्टिकुलर रीजन, यूके साउथ में मैं इसको बनाऊंगा। जो मेरी सेकेंड वीएम होगी इट विल बी वेब सर्वर 02, और ये भी मैं यूके साउथ में ही बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। इट कैन बी इन एनी रीजन। इसके बाद once the deployment of these two servers have been completed, then what I will do, then I will be installing the IIS role. अब मैं इसमें IIS रोल इंस्टॉल करूंगा। दे विल बी विंडोज बेस्ड सर्वर्स। तो इसमें IIS का रोल इंस्टॉल करके आई विल मेक इट एज वेब सर्वर। मैं इसको वेब सर्वर बनाऊंगा। वेब सर्वर बनाने के बाद वी हैव टू होस्ट टू डिफरेंट वेब पेजेस ऑन दीज टू सर्वर्स। इन दोनों सर्वर्स पे दो अलग अलग वेब पेजेस मैं होस्ट करूंगा। एक सर्वर पे लेट्स से मैं इमेजेस वाला यूआरएल होस्ट करूंगा और एक में मैं वीडियोस वाला। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे कर रहा हूँ। उसके ठीक बाद, इतना हो जाने के बाद, देन वी विल इम्प्लीमेंट द एप्लीकेशन गेटवे। तब जाके हम एप्लीकेशन गेटवे इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। So again, before jumping to the practical, let me tell you one architecture. जब हम एप्लीकेशन गेटवे की बात करते हैं तो इसमें जो बैकएंड पूल होता है हमारा, बैकएंड पूल का मतलब वो सर्वर्स जिन सर्वर्स पे हमारे वेब एप्लीकेशंस चल रहे हैं और जो एप्लीकेशन गेटवे से कनेक्टेड है। तो जो मेरा बैकएंड पूल होता है, वो बैकएंड पूल मेरा एज्योर की वर्चुअल मशीन्स भी हो सकती है। मतलब आपकी साइट्स या आपकी जो वेब एप्लीकेशन है, व्हेन वी से बैकएंड पूल, तो वो एज्योर के वीएम्स पे भी आपकी साइट होस्टेड हो सकती है। मतलब आपका बैकएंड पूल एज्योर पे उसकी वर्चुअल मशीन हो सकती है जहाँ पे आपकी साइट रन कर रही है, या फिर ऑन प्रिमाइसिस सर्वर भी हो सकता है। मे बी आपके पास एक ऑन प्रिमाइसिस सर्वर है जिसके ऊपर आपने अपनी वेब एप्लीकेशन को रन करा रखा है, और उस ऑन प्रिमाइसिस सर्वर को आप कनेक्ट कर सकते हो विद द एप्लीकेशन गेटवे एज ए बैकएंड पूल। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। या फिर you have your web application running in the app services in Azure, या फिर आपने उसको ऐप सर्विसेज में चला रखा है। ऐप सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है एज्योर के अंदर, जो आपको फैसिलिटी देती है बिना वेब सर्वर बनाए डायरेक्ट कंसोल के ऊपर अपनी वेब एप्लीकेशंस या अपने कोड या अपने वेबसाइट को रन कराने की। तो ये वाला टॉपिक हम आगे के सेशंस में देखेंगे प्रैक्टिकली। आई विल टेल यू बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज something where a lot of questions will be there. सो बैकएंड पूल एप्लीकेशन गेटवे के केस में एज्योर वीएम भी हो सकता है। ऑन प्रीमाइसिस सर्वर को भी आप एप्लीकेशन गेटवे में ऐड कर सकते हो और ऐप सर्विसेज को भी ऐड कर सकते हो। ऐप सर्विसेज के अंदर आगे जाके हम टॉपिक पढ़ेंगे ऐप सर्विस स्लॉट। तो ऐप सर्विसेज स्लॉट को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जबकि अगर हम बात करें एज्योर लोड बैलेंसर की, तो वहां पे सिर्फ आप उन्हीं सर्वर्स को ऐड कर सकते हो एज ए बैकएंड पूल जो सर्वर्स एज्योर में एज ए वीएम है। मतलब आपकी वेब एप्लीकेशन सिर्फ एज्योर वीएम में हो सकती है, या तो वीएमएसएस का पार्ट हो सकती है।
मतलब वर्चुअल मशीन स्केल सेट में आपकी वीएम चल रही है, या तो नॉर्मल इंडिपेंडेंट एज्योर वीएम है, उसी के ऊपर आपकी वेब एप्लीकेशन चल सकती है इन द केस ऑफ एज्योर लोड बैलेंसर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन गेटवे, तो ये ऑन प्रिमाइसिस सर्वर को भी सपोर्ट करता है एज ए बैकएंड टूल, एज्योर की वीएम्स को भी करता है, ऐप सर्विसेज को भी और ऐप सर्विस स्लॉट्स को भी, तो ये मल्टीपल बैकएंड्स को सपोर्ट कर सकता है। अगेन इट इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट लोड बैलेंसर, सो ये भी इसकी एक खासियत है। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज्योर लोड बैलेंसर एंड एप्लीकेशन गेटवे। तो इस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा विद द डिटेल डिस्क्रिप्शन। बट अभी के लिए जो आपका नॉर्मल एज्योर लोड बैलेंसर है वो लेयर 4 पे काम करता है, एप्लीकेशन गेटवे वर्क्स ऑन लेयर 7 ऑफ द ओएसआई मॉडल। आपका जो एज्योर लोड बैलेंसर है वो ट्रैफिक की राउटिंग, मतलब लोड बैलेंसिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। बट एप्लीकेशन गेटवे इज स्मार्ट, तो ये जब लोड बैलेंसिंग करता है तो ये यूज करता है यूआरएल बेस्ड और पाथ बेस्ड राउटिंग। इसके अलावा एप्लीकेशन गेटवे मल्टीपल बैकएंड टूल्स को सपोर्ट कर सकता है, जैसा कि मैंने बताया। और आपका एज्योर लोड बैलेंसर सिर्फ एज्योर की वर्चुअल मशीन को एज ए बैकएंड सपोर्ट करता है। तो दीज आर सम जनरल डिफरेंसेस, बाकी हम आगे बात करेंगे। तो नाउ लेट्स जंप टू द प्रैक्टिकल, लेट्स डू दिस थिंग्स। तो टू वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं फटाफट ऑन द एज्योर पोर्टल। So here I am on my Azure portal. I will just go to the virtual machine. यहाँ पे जाके क्लिक ऑन क्रिएट देन वर्चुअल मशीन। सो नॉर्मल वर्चुअल मशीन जैसे हम बनाते हैं वही प्रोसेस है। बाकी मेरा सब्सक्रिप्शन इट इज सेलेक्टेड पे एज यू गो। और रिसोर्स ग्रुप मेरे पास कोई फ्री नहीं है, सो आई विल क्रिएट ए रिसोर्स ग्रुप विद द नेम ऑफ पॉप। और सर्वर का नाम हम देने वाले हैं वेब सर्वर -01, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट्स पे मेंशन किया है। सो वेब सर्वर 01 सर्वर का नाम होने वाला है। इट विल बी देयर इन द यूके साउथ रीजन। इंडिपेंडेंट है, आप इसको चाहे तो अवेलेबिलिटी जोन, वीएमएसएस या अवेलेबिलिटी सेट्स का पार्ट बना सकते हो। इमेज यू कैन पिक लाइनेक्स इफ यू वांट टू इंस्टॉल द अपाचे, बट मैं यहाँ पे आईआईएस यूज कर रहा हूँ, सो मैं विंडोज सर्वर कोई भी फ्लेवर 2019, 2022, 2025 कुछ भी हम ले सकते हैं। साइज मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल 2 कोर्स ऑफ सीपीयू एंड 8 GB ऑफ रैम, सो D2SB3 मैंने यहाँ पे ले लिया। बाकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेटअप करते हैं। लेट मी एंटर द पासवर्ड। सो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड डाला। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन या एक वेब पेज होस्ट करने वाले हैं, सो दैट विल बी इन HTTP, सो मैं इस HTTP पोर्ट को भी इनेबल कर रहा हूँ अलॉन्ग विद द RDP। लोड बैलेंसिंग में हमने डिस्कस किया था कि वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है वेब सर्वर कैसे क्रिएट होता है, सो यू कैन रेफर माई लास्ट सीरीज ऑफ एज्योर लोड बैलेंसर एज वेल, तो वहाँ पे डिटेल में आइडिया हो जाएगा आपको। तो मैंने HTTP पोर्ट इनेबल कर दिया ताकि मेरी वेबसाइट एक्सेस हो जाए, और RDP रिमोट के लिए इनेबल्ड है ही। क्लिक ऑन नेक्स्ट। आई डोंट वांट टू ऐड एनी एक्स्ट्रा डिस्क, सो मैं नेक्स्ट करूंगा। और नेटवर्क इंटरफेस में मैं वीनेट का नाम चेंज कर रहा हूँ। अभी डिफॉल्ट नेम आ रहा है, सो आई विल जस्ट एडिट रेंजेस। ठीक है, रेंजेस में मैं कोई अभी फिलहाल चेंजेस नहीं कर रहा। आई विल जस्ट चेंज द नेम ऑफ इट विद VNet-01। और सबनेट का नाम इफ यू वांट टू चेंज, तो सबनेट नेम भी चेंज कर देते हैं। एंड वी विल गिव इट एज S1, S1 सबनेट। सेव। सो सबनेट का नाम और वीनेट का नाम चेंज किया है मैंने, रेंजेस आर ओके। क्लिक ऑन सेव। बाकी सब कुछ डिफॉल्ट रहने वाला है। यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो, एप्लीकेशन गेटवे, बट वी विल नॉट इनेबल द एप्लीकेशन गेटवे राइट नाउ, आई विल डू इट लेटर। सो अभी इसको नन रहने देते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट, 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 देन रिव्यू प्लस क्रिएट। तो एक क्विकली एक फर्स्ट वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट होने वाली है। So validation is successful. Now we can click on create and let's wait for the creation. Once this is created, then I will deploy the second virtual machine. फिर हमें IIS इंस्टॉलेशन करनी है, उसके बाद हमें वेब पेजेस होस्ट करने हैं, देन वी विल जंप टू द एप्लीकेशन गेटवे टॉपिक। So let's wait for some time. So as you can see, my first VM has been deployed. Now let's deploy the second virtual machine as well. So second VM जो मैं बनाने वाला हूँ, it will be with the name of web server -02 in the UK South region. So if you go to the virtual machine, you can see one VM is ready. Now let's click on create and let's create the second virtual machine as well. So second VM भी बनाते हैं।
सेम रिसोर्स ग्रुप चूज करते हैं, सेम में बनाते हैं। इफ यू वांट यू कैन मेक इट इन द डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप एज वेल। इसका नाम होने वाला है वेब सर्वर -02। लेट मी टाइप इट। या यूके साउथ में ही होने वाली है, देन इट विल बी वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वीएम। इमेज इज ओके, साइज भी ठीक है। नाउ आई विल सेट अप द यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसके बाद बिकॉज वी आर गोइंग टू होस्ट द वेब पेज ओवर हियर एज वेल, सो इस पे भी मैं HTTP इनेबल कर देता हूँ। और अगर इन केस आप इसको भूल गए हो, इफ यू फॉरगेट, इफ यू मिस टू ऐड दिस HTTP, यू कैन ऑल्सो डू इट लेटर वाया NSG। आप NSG के थ्रू बाद में भी पोर्ट्स को इनेबल कर सकते हो। इस टॉपिक के बारे में भी आगे देखेंगे हम। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो आई विल नॉट अटैच एनी डिस्क। नेक्स्ट। और इस सर्वर को भी मैं VNet नंबर 1 में ऐड करने वाला हूँ, सो सेम नेटवर्क में ऐड कर देते हैं। आई विल चूज VNet 1 और सबनेट ले लेते हैं S1 का ही पार्ट होगा, क्योंकि VNet 1 से नेटवर्क से कनेक्ट होगा, तो S1 जो सबनेट है हमारा उसी के थ्रू ये IP ले लेगा। पब्लिक IP एक नई क्रिएट होगी सो दैट वी कैन टेक द रिमोट ऑफ दिस सर्वर। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। तो ये भी वैलिडेशन कर रहा है अभी। देन क्लिक ऑन क्रिएट एंड लेट्स वेट फॉर द डिप्लॉयमेंट अगेन। तो एज वी कैन सी दिस VM डिप्लॉयमेंट इज ऑल्सो completed। अगर हम मैं वर्चुअल मशीन में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को 2 VMs रेडी मिलेगी। दे बोथ आर ऑपरेटिंग ऑन द विंडोज सर्वर, दोनों के दोनों रनिंग स्टेट में है। अभी ये सिंक हो रहा है तो क्रिएटिंग दिखा रहा है, थोड़े टाइम में रनिंग में आ जाएगा। एक ही रिसोर्स ग्रुप में है, डिफरेंट में भी हो सकते हैं। साइजेस दोनों के सेम है जनरली, एंड दीज आर द पब्लिक IP। अब इनके अंदर हमें क्या करना है, दीज टू सर्वर्स आर रेडी, नाउ वी हैव टू इंस्टॉल द IIS रोल सो दैट वी कैन मेक इट वेब सर्वर। तो वेब सर्वर बनाने के लिए IIS का रोल इंस्टॉल करना है अब हमें इसके अंदर। तो रिमोट लेते हैं सर्वर्स का एंड लेट्स इंस्टॉल द IIS। सो IIS इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग और वेब पेजेस को होस्ट करने के रिगार्डिंग मैंने लास्ट एज्योर लोड बैलेंसर सीरीज में बताया था प्रोसेस, सो यू कैन रेफर दैट इन केस यू आर न्यू। तो जस्ट गो टू द सर्वर। वेब सर्वर 01 पे आ गया मैं, और मैं इसका रिमोट ले रहा हूँ अब। सो यू कैन डाउनलोड द RDP फाइल और यू कैन डायरेक्टली डू द MSTSC, दैट्स योर चॉइस। तो मैंने एक RDP फाइल डाउनलोड करी। नाउ आई विल ओपन इट, देन कनेक्ट, एंटर द पासवर्ड ऑफ द VM, देन ओके। नाउ क्लिक ऑन yes। तो वी हैव द रिमोट ऑफ दिस वेब सर्वर 01। फर्स्ट सर्वर का रिमोट आ गया। अब सिमिलरली मैं सेकंड सर्वर का भी रिमोट लूंगा। सो आई विल गो टू माय सेकंड सर्वर, अगेन कनेक्ट, then I will download the RDP file, keep open, connect। और अगर कोई एरर आता है देन यू कैन रिफ्रेश द ब्राउजर वंस, क्योंकि कभी कभी IP सिंक नहीं होता है एकदम से VM क्रिएट होने के बाद। देन यू कैन अगेन डाउनलोड द RDP फाइल, ओपन, कनेक्ट, एंटर द पासवर्ड, देन ओके, देन यस। तो इस सर्वर का भी रिमोट आ चुका है मेरे पास। सो मेरे पास वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2, जो हमारे दोनों सर्वर्स है, उनका रिमोट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर IIS का रोल इंस्टॉल करके देन वी हैव टू होस्ट 2 डिफरेंट वेब पेजेस ऑन दीज 2 डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स। दोनों सर्वर पे वेब पेजेस होस्ट करना है, तो उससे पहले IIS का रोल इंस्टॉल करते हैं। तो लेट मी गो टू द वेब सर्वर 01। ये मेरा वेब सर्वर 01 है, इस पे आया मैं, एंड लेट्स वेट फॉर द सर्वर मैनेजर टू रिफ्रेश। सर्वर मैनेजर मैंने आपको बताया था, जैसे ही हम सर्वर पे लॉगिन करते हैं अपने आप ही ओपन हो जाता है विंडोज में। बट अगर इन केस यू वांट टू ओपन इट मैनुअली, मान लो ये कैंसिल हो गया और मैनुअली ओपन करना है, सो विंडो बटन पे क्लिक करके, क्लिक ऑन द विंडो बटन, और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो सर्वर मैनेजर। फिलहाल
इट इज इन द रिफ्रेश मोड। अभी एक और एक्स्ट्रा कंसोल ऐड हो जाएगा जैसे ये रिफ्रेश कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स वेट। तो थर्ड कंसोल हैज बीन एडिड, एक एक्स्ट्रा कंसोल ऐड हो गया। अब रिफ्रेश कंप्लीट हो चुका है, सो वी कैन नाउ क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये सब हमने समझा था लास्ट टाइम। यहाँ पे हमें IIS का रोल इंस्टॉल करना है विच इज़ वेब सर्वर। तो सेलेक्ट द बॉक्स। उसके साथ साथ उसके मैनेजमेंट टूल्स भी इंस्टॉल होंगे। क्लिक ऑन ऐड फीचर्स। नेक्स्ट 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 एंड फाइनली इंस्टॉल। Same thing we have to follow on the second server as well. So I will minimize it and then I will move to the web server 02। यहाँ पे आने के बाद भी add roles and features पे क्लिक करना है, बट अभी ये रिफ्रेश हो रहा है। So let's wait for some time। So refresh is done, थर्ड कंसोल भी ऐड हो गया। तो अब हम add roles and features पे क्लिक करते हैं। Then next, 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 and here I will select IIS, which is Internet Information Services, add features, next, next and install। So wait करते हैं for these two servers to get completed with the request। जैसे ही इन दोनों में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी then we will move with the hosting of two different web pages on both the servers। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो हम दोनों सर्वर्स पे वेब पेज होस्ट करेंगे। so let's wait for some time again। तो फर्स्ट वाले सर्वर पे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है बट सेकंड वाले पे अभी भी चल रही है। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर सेकंड्स, सेकंड वाले पे भी होने देते हैं। So as we can see, the installation is also completed on web server 02। दोनों ही सर्वर पे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुकी है IIS की। नाउ आई विल गो टू माय वेब सर्वर 01। ये मेरा वेब सर्वर 01 है। सी यू कैन वेरीफाई फ्रॉम हियर। इसके ऊपर लेट्स से मुझे जो मेरा वेब सर्वर 01 है उसके ऊपर जो मैं वेब पेज होस्ट करूंगा दैट विल बी रिलेटेड टू द इमेजेस। मतलब मैं रियल में कोई इमेज की कोडिंग नहीं करने वाला यहाँ पे। इन कंपनी द वेब पेजेस विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द डेवलपमेंट टीम। सो वो आपका काम नहीं है। एज ए क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इन्वायरमेंट, not to do any kind of coding or to create any web application for the company। so images वाला जो web code होगा that will be provided to you by the hosting team or by the development team। तो वेब सर्वर 01 पे इमेजेस वाला कोड, एंड जो वेब सर्वर 02 है उस पे मैं लेट से वीडियोस वाला कोड पोस्ट करने वाला हूँ। और ये कोई रियल इमेजेस और वीडियोस वगैरह मैं बनाने नहीं वाला। वी विल नॉट स्पेंड दैट मच लेवल ऑफ कोडिंग। हम नॉर्मल सा वेब पेज बनाएंगे जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे बनाया था। सो लेट्स डू इट। सो वेब सर्वर 01 पे चलता हूँ मैं, और वही सेम प्रोसेस। गो टू द सी ड्राइव लोकेशन। सी ड्राइव में initpub यही फोल्डर बनता है जैसे ही IIS की इंस्टॉलेशन होगी। देन गो टू ट्रिपल डब्ल्यू रूट। और पहले हमने क्या किया था, इन द एजोर लोड बैलेंसर वी हैव डायरेक्टली क्रिएटेड वन ऑफ द डिफॉल्ट डॉट HTML फाइल। मतलब मैंने अपना जो साइट का कोड था, जो मेरा एप्लीकेशन कोड था, यहीं पे लाके सेव कर दिया था। बट व्हेन इट कम्स टू द कस्टम यूआरएल, अगर आपको कस्टम यूआरएल फीचर पे काम करना है, जैसे एप्लीकेशन गेटवे वाले केस में कस्टम यूआरएल की बात होती है। सो कस्टम यूआरएल के केस में यू हैव टू क्रिएट ए सेपरेट फोल्डर फॉर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस। जैसे एक वेबसाइट क्या होता है, एक वेबसाइट कलेक्शन होता है मल्टीपल पेजेस का, राइट। एक वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको learn.microsoft.com की साइट ओपन करके दिखाई थी, उसके अंदर कई सारे पेज थे और जिन जिन पेज पे मैं क्लिक कर रहा था वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता था। फॉर एग्जांपल मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे learn.microsoft.com की साइट ओपन करी, इस पे मल्टीपल पेजेस है। अगर मैं एजोर पे क्लिक करता हूँ तो एजोर वाला वेब पेज ओपन हो जाता है। एजोर के अंदर अगर मैं लेट से नेटवर्किंग में जाता हूँ तो नेटवर्किंग पेज ओपन होता है। फिर मैं एप्लीकेशन गेटवे पे क्लिक करता हूँ तो एप्लीकेशन गेटवे पेज ओपन होता है। सो इट मीन्स ए वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस। एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं। अब होता क्या है, ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं इनके अपने अपने एक यूआरएल है जो कि पेरेंट यूआरएल। पेरेंट यूआरएल क्या है, learn.microsoft.com। इसके साथ साथ कस्टम यूआरएल भी काम कर रहा है। मतलब जिस पेज को मैं ओपन करता हूँ उसी पेज का यूआरएल यहाँ पे आपको दिखाई देता है। सो इन यूआरएल्स के लिए क्या किया जाता है, ये जितने भी पेजेस है, जितने भी ये कोड पेजेस है, क्योंकि ये सब कोड से क्रिएट किए गए हैं, देयर इज प्रोग्रामिंग बिहाइंड इट। इस पेज को बनाने के लिए बैकएंड में एक कोड होगा, उसके थ्रू इस पेज को रेडी किया गया होगा। सो देयर इज अ प्रोग्रामिंग बिहाइंड इट। तो ये पूरा पूरा जो पेज होता है, मतलब पूरा पूरा जो कोड होता है, इनको अलग अलग फोल्डर्स में रखा जाता है।
सो दैट द यूआरएल्स कैन बी मैनेज्ड। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे लाके होस्ट नहीं किया जाएगा, एक फोल्डर के अंदर एक पर्टिकुलर पेज को, एक कोड पेज को रखा जाएगा। जैसे मान लो मैं वेब सर्वर 01 पे इमेजेस से रिलेटेड पेज होस्ट करना चाहता हूँ, तो इमेजेस फोल्डर के अंदर जाके उस पेज के जो भी कोड होंगे उनको रखा जाएगा। तभी जाके जैसे ये पेज एक्सेस हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला पेज एक्सेस कर रखा है, तो ये पेज किसी ना किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रखा गया है जहाँ से हम ओवरव्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द जनरल थिंग। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया इमेजेस, और इसके अंदर मेरे को अपना इमेजेस से रिलेटेड कोड रखना है। तो मैंने क्या करा, एक नॉर्मल सा नोटपैड ओपन किया जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, एंड हियर आई विल राइट H1 विच इज हेडिंग 1, देन दिस इज माई इमेजेस वेब पेज। मतलब नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया इमेजेस वेब पेज, ताकि हमें आसानी हो समझने में। होस्टेड ऑन, मैंने लिख दिया सर्वर का नाम वेब सर्वर 01। मतलब एक नॉर्मल सा बनाया सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, देन क्लोज द हेडिंग। और इसको मुझे उस सेम लोकेशन में सेम फोल्डर के अंदर जाके सेव करना है। तो go to save as this PC, then I will move to the C drive, initpub www root, then I will go inside the images, और यहाँ पे लाके मैं इसको किसी भी नाम से सेव कर दूंगा, जैसे default.html या index.html, क्योंकि मैंने HTML में कोड लिखा है। बाकी जिस लैंग्वेज में कोड लिखा गया है पाइथन में तो py, if it is on .NET so .NET definitely। so all file, then save। सो यहाँ पे एक वेब पेज होस्ट हो गया। नाउ सेम थिंग आई विल डू ऑन सेकंड सर्वर एज वेल। सो सेकंड सर्वर जो मेरा है वेब सर्वर 02, इसके ऊपर मैं वीडियोस वाला कोड लॉन्च करने वाला हूँ। सो आई विल गो टू द सेकंड वेब सर्वर 02, इस पे भी ओपन द नोटपैड, यहाँ पे H1, एंड दिस इज माई वीडियो वेब पेज hosted on web server 02, और close the heading, and now I will save it। So go to the C drive, initpub www root, and here I will save it as default.html, वही नाम, then all files, then save। so दोनों ही सर्वर पे मेरे वेब पेजेस होस्टेड हो चुके हैं जैसा कि हम चाहते थे। सो दिस टास्क इज डन, इतना काम हमारा खत्म हो गया। नाउ लेट्स सी इफ द पेजेस आर एक्सेसिबल और नॉट। पेज एक्सेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अब उसको समझते हैं एक बार। तो आई विल गो टू माई वर्चुअल मशीन, वेब सर्वर 01 पे मैं गया, और इसका जो भी पब्लिक आईपी है उसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो दिस इज द पब्लिक आईपी, आई विल पेस्ट इट इन माई ब्राउजर, देन स्लैश और मेरी साइट का नाम default.html। अब अगर मैं default.html टाइप करके एंटर करूंगा तो देयर विल बी एरर, मतलब कोई भी पेज एक्सेस नहीं होगा, देयर विल बी एरर, क्योंकि हमने एक कस्टम यूआरएल बनाया है, हम इमेज वाला पेज एक्सेस करना चाहते हैं। सो देयर विल बी चेंजेस इन द यूआरएल। होगा क्या, सर्वर का आईपी स्लैश, जो हमारा वेब सर्वर 01 है जिसकी ये आईपी है, इस सर्वर पे हमने इमेजेस वाला पोर्शन होस्ट किया है। सो यहाँ पे स्लैश इमेजेस, देन स्लैश नेम ऑफ द साइट विच इज default.html, देन एंटर। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी साइट एक्सेस हो रही है इमेज वाली। नाउ आई विल टेक द पब्लिक आईपी ऑफ सेकेंड वीएम। so this is the IP of second VM, and here I will paste it स्लैश, इसके ऊपर वीडियोस वाला कोड है। so video slash default.html is the name of the site। sorry, double L has been pasted, let me just remove the one, yeah, now, so now it should access the video portion. Let me just hit the default.html is fine, let's wait for some time। is the IP correct? so 20.0.194.171 slash video slash default.html, let me also see if the spelling is also correct or not। so go to the C drive, initpub www root. Okay, we have not created, we have not saved this particular file yet. That's why that error is coming. So we have to save it, save as, then this PC, initpub www root, और इसके अंदर हम बनाएंगे वीडियोस वाला फोल्डर यूआरएल के लिए, और इस वीडियोस वाले फोल्डर के अंदर में वी विल सेव इट विद द नेम ऑफ default.html, देन
all files, then save. Now it should be accessible. So hit enter and now it is accessible. तो मेरे दोनों ही वेब पेज एक्सेस हो रहे हैं। सर्वर वन पे जो इमेजेस वाला पेज है वो भी एक्सेस हो रहा है, और सर्वर टू पे जो मेरा वीडियो वाला पेज है दैट इज ऑल्सो एक्सेसिबल। इट मीन्स मेरा वेब सर्वर प्रॉपरली काम कर रहा है। देयर इज नो इशू विद माई वेब सर्वर। नाउ these things have been done, so it's the time to implement the application gateway। अब implement करते हैं हमारा application gateway। तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। लेट्स मूव टू द एज्योर पोर्टल। यहाँ आने के बाद यू हैव टू सर्च फॉर द एप्लीकेशन गेटवे। तो सर्च फॉर द एप्लीकेशन गेटवे, देन यू हैव टू ओपन दिस वन। एप्लीकेशन गेटवेज को ओपन करना है। और यहाँ पे वही देखो, हमारे जो चार तरीके के लोड बैलेंसर की मैं बात कर रहा था, एप्लीकेशन गेटवे, लोड बैलेंसर, फ्रंट डोर एंड ट्रैफिक मैनेजर। तो अभी लास्ट सेशन में हमने लोड बैलेंसर कंप्लीट कर लिया था। आज हम एप्लीकेशन गेटवे के बारे में जान रहे हैं। देन अपकमिंग सेशंस में हम इन दोनों के बारे में भी जानेंगे। तो फिलहाल अभी हम एप्लीकेशन गेटवे पे रहते हैं। देन क्लिक ऑन क्रिएट एंड देन यू हैव टू चूज द एप्लीकेशन गेटवे ऑप्शन। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एप्लीकेशन गेटवे और एप्लीकेशन गेटवे फॉर कंटेनर्स। एप्लीकेशन गेटवे क्या करता है, आपके इनकमिंग ट्रैफिक को वीएम बेस्ड वर्कलोड्स के ऊपर राउट करता है। मतलब आपका जो भी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन गेटवे पे आई यूजर की, उसको उठा के बैकएंड पूल में जो वीएम्स है उसके ऊपर राउट करता है। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी रिक्वेस्ट किसी लेट्स से ऑर्केस्ट्रेशन के ऊपर जाए, ऑर्केस्ट्रेशन मतलब कोई कंटेनर रन कर रहा है, कोई डॉकर रन कर रहा है, क्यूबरनेटीज के प्लेटफॉर्म से मैनेज हो रहा है, आप चाहते हो डॉकर के ऊपर आप रिक्वेस्ट को बाईपास करो या फिर क्यूबरनेटीज के क्लस्टर पे करो, देन यू विल चूज द सेकंड ऑप्शन। सो सेकंड ऑप्शन अभी हमसे रिलेटेड नहीं है। वी वांट टू सेंड द ट्रैफिक ऑफ द यूजर टू द बैकएंड पूल। बैकएंड पूल में मेरे ऑन प्रीमाइसिस सर्वर, ऐप सर्विसेज हो सकती है, एजोर की वीएम हो सकती है। तो अगर आप ये वाला सेटअप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, ये वाला, तो उस केस में वी विल चूज द टॉप ऑप्शन। मतलब एक एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट करने के लिए वी हैव टू चूज द टॉप ऑप्शन। कंटेनर के साथ अगर इसको क्रिएट करना है, जो हम आगे जाके क्यूबरनेटीज के सेशन जब हम करेंगे, आई विल ऑल्सो शूट द सेशन फॉर एज्योर क्यूबरनेटीज सर्विसेज, तो हम देखेंगे। अभी फिलहाल हमें एक एप्लीकेशन गेटवे सेटअप करना देखना है। वी डोंट वांट टू पर्टिकुलरली फोकस ऑन द डॉकर एंड क्यूबरनेटीज पार्ट एज ऑफ नाउ। सो चूज द एप्लीकेशन गेटवे। अब यहाँ पे वही डिटेल्स किस सब्सक्रिप्शन में होगा, सो आई हैव चूजन माय सब्सक्रिप्शन। मैं इसको सेम रिसोर्स ग्रुप में रख रहा हूँ, आप एक नया रिसोर्स ग्रुप बना के भी रख सकते हो, नो इश्यूज। देन एप्लीकेशन गेटवे जो आप बना रहे हो इसका नाम क्या होगा, सो आई विल गिव लेट्स से ऐप GW-01। किस रीजन में एप्लीकेशन गेटवे बनने वाला है, सो यू कैन चूज द रीजन। आई विल चूज यूके साउथ। देन कम्स द टीयर। अब आती है टीयर की बात। सो इफ यू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन यू विल सी थ्री टीयर्स आर देयर। टीयर का मतलब हो गया बेसिकली किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए। तो देर आर थ्री टीयर्स, बेसिक, स्टैंडर्ड V2 एंड वेब V2। सो वेब V2 का मतलब हो गया वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वर्जन 2। मतलब जो मैंने आपको वेब बताया था जिससे एप्लीकेशन गेटवे को सिक्योर किया जाता है, उस वेब का जो करंट वर्जन है मार्केट में, इट इज वर्जन 2। तो वही ये बता रहा है, इफ यू वांट टू क्रिएट द वेब एप्लीकेशन फायरवॉल देन यू विल चूज द वेब। बट अभी फिलहाल वी आर नॉट क्रिएटिंग द वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, देन वी हैव टू इग्नोर दिस। अब आते हैं दो SKU, बेसिक और स्टैंडर्ड। ये दोनों रिलेटेड है हमारे एप्लीकेशन गेटवे से। अगर मैंने बेसिक SKU लिया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इट विल प्रोवाइड यू द सपोर्ट ऑफ IP वर्जन 4 एज वेल एंड IP वर्जन 6 एज वेल। मतलब IP वर्जन 4 का भी सपोर्ट है और ड्यूअल स्टैक। ड्यूअल स्टैक का मतलब है IPv4 और 6 अगर हम दोनों चला रहे हैं हमारे नेटवर्क में तो दोनों को सपोर्ट करेगा। बट यहाँ पे इन द बेसिक टीयर द रिडंडेंसी, द हाई अवेलेबिलिटी इज नॉट अवेलेबल। मतलब यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी या रिडंडेंसी का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ IP सपोर्ट्स है। और HTTP का जो HTTP प्रोटोकॉल है जिससे हम साइट एक्सेस करते हैं, उसका जो लेटेस्ट वर्जन है विच इज 2, HTTP 2, इसका सपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। बट अगर आप जाते हो स्टैंडर्ड V2 में, तो स्टैंडर्ड V2 में हाई अवेलेबिलिटी, रिडंडेंसी का सपोर्ट भी है। मतलब यहाँ पे ऑटो स्केलिंग सेटअप कर सकते हो आप। एंड ऑटो स्केलिंग का मतलब हो गया अगर मेरे एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर लोड ज़्यादा आ गया, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल कॉम्पोनेंट। तो अगर इसी के ऊपर यूजर का लोड ज्यादा आ गया,
सो लोड आने के बाद ऑटोमेटिकली इट विल डू द स्केलिंग, मतलब ये अपनी कॉपी बना लेगा। कितनी कॉपी बना लेगा, आप चाहते हो तो यस करके देन यहाँ पे मिनिमम कितना मेंटेन करना चाहते हो, मैक्सिमम कितनी कॉपीज पे ले जाना चाहते हो आप, लेट से मैं चाहता हूँ 100 बना ले तो 100 भी ले लेगा। इफ यू वांट 1000 तो 1000 यहाँ पे नहीं लेगा, सी। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 125। 125 तक स्केलिंग हो सकती है, मतलब एप्लीकेशन गेटवे अपनी 125 कॉपीज बना सकता है व्हेन देयर विल बी लोड, तो लोड के केसेस में। तो ये फैसिलिटी बेसिक के अंदर नहीं है, बेसिक ओनली सपोर्ट्स द ड्यूअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बट बेसिक डज नॉट सपोर्ट एनी हाई अवेलेबिलिटी, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। सो आई विल चूज द स्टैंडर्ड V2 क्योंकि बेसिक कुछ टाइम के बाद मे बी इट विल गेट ऑब्सोलीट, and in companies also we use standard V2, means all the companies are using the standard version 2 as part of their standard। तो कोई लेगेसी इंफ्रा में है तो वो बेसिक यूज करता है, अदरवाइज सारी कंपनी V2 ही यूज करती है। सो ऑटो स्केलिंग नो, आई डोंट वांट टू यूज द ऑटो स्केलिंग राइट नाउ, बट करना है तो यस करके आप मिनिमम और मैक्सिमम काउंट यहाँ पे दे सकते हो। इट्स सेम लाइक योर VMSS। तो फिलहाल अभी तो नो है, एंड आई वांट टू मेंटेन ओनली वन कॉपी, सो ओनली वन नंबर। आई हैव ओनली IP वर्जन 4 इन द एनवायरनमेंट, सो मैं IP वर्जन 4 ही चूज करूंगा। लेटेस्ट HTTP हम यूज करना चाहते हैं, सो आई विल इनेबल द HTTP 2। नाउ आप इसको किस वर्चुअल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो इट इज आस्किंग कि आपके जो आपका जो सर्वर्स है, आपके जो बैकएंड टूल्स है वो किस VNet के साथ है, या फिर आप इसको किस नेटवर्क के साथ ऐड करना चाहते हो। सो आई वांट टू ऐड इट विद VNet 01। VNet 01 के साथ मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सर्वर्स भी वहीं पे है। अब ये पूछ रहा है कि हमें सबनेट बताओ किस सबनेट से एप्लीकेशन गेटवे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे VNet 1 पे एक सबनेट बनाया था मैंने S1, इफ यू रिमेम्बर, लेट मी शो यू। तो इफ आई गो टू माई VNet, सो VNet में मैंने एक सबनेट बनाया था, ये मेरा VNet है, VNet 01, एंड हियर वी हैव ए सबनेट विद द नेम ऑफ S1। तो इस S1 सबनेट के थ्रू मेरे वर्चुअल मशीन्स को IP मिल रहा है, मतलब अगर मैं जाऊं कनेक्टेड डिवाइसेस में, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास दो सर्वर्स है, वेब सर्वर 01 एंड वेब सर्वर 02, और इन दोनों को IP किससे मिल रहा है, S1 सबनेट से। सो ये सबनेट मेरे VMs को डायरेक्टली IP देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि मेरे VMs इसी के साथ कनेक्टेड है। सो एप्लीकेशन गेटवे के केस में देखो ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, इसका ये मतलब है कि एप्लीकेशन गेटवे को अपना एक डेडिकेटेड सबनेट चाहिए। आप एप्लीकेशन गेटवे को उस सबनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते जो सबनेट ऑलरेडी बिजी है विद अनदर VMs। मतलब वो सबनेट जो VMs को IP दे रहा है, एप्लीकेशन गेटवे उसके अंदर क्रिएट नहीं होता, उसको अलग से एक डेडिकेटेड सबनेट चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द IP। तो IP मैनेजमेंट के लिए इसको अलग सबनेट चाहिए इनसाइड ए VNet। अब बेस्टियन का अगर आपको केस याद हो तो वो भी सिमिलरली ऐसा ही था, व्हेन वी वर डिप्लॉइंग द मैनुअल बेस्टियन, तो वहाँ पे हमने एक डेडिकेटेड सबनेट क्रिएट किया था विद द नेम ऑफ एज्योर बेस्टियन सबनेट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, एप्लीकेशन गेटवे के केस में भी हमें एक डेडिकेटेड सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा। या तो आप VNet में जाके क्रिएट कर लो सबनेट पे क्लिक करके, या तो यहीं से अगर आप क्लिक करोगे मैनेज सबनेट कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक ऑन दिस, तो ये आपको लेके जाएगा VNet के पेज पे। गो टू द सबनेट, क्लिक ऑन द सबनेट, और यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने देना है आपको क्योंकि एप्लीकेशन गेटवे का कोई स्टैंडर्ड नेमिंग नहीं है, आप किसी भी नाम से सबनेट बना सकते हो, सो लीव इट डिफॉल्ट। और कुछ भी नाम दे दो, आई विल गिव ऐप गेटवे सबनेट। रेंजेस आर ओके, रेंजेस ठीक है, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस हेयर। देन क्लिक ऑन ऐड। तो एक एक्स्ट्रा सबनेट ऐड हो गया यहाँ पे। एक्स्ट्रा सबनेट ऐड होने के बाद नाउ आई विल गो टू माई एप्लीकेशन गेटवे पेज अगेन, और यहाँ जाके मैं अपना सबनेट चूज कर लूंगा जो मैंने बनाया। आप देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा क्योंकि इसको डेडिकेटेड सबनेट मिल गया है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब जैसे कि लास्ट टाइम हमने एज्योर लोड बैलेंसर में देखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी एक फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड वही, मतलब जब आपके यूजर्स रिक्वेस्ट करेंगे एप्लीकेशन गेटवे को, तो वो यूजर्स कहीं से भी हो सकते हैं, दे कैन बी द पब्लिक यूजर्स, जनरल यूजर्स। तो जब भी उनकी रिक्वेस्ट आएगी इट विल कम थ्रू द इंटरनेट, और हमारा जो एप्लीकेशन गेटवे है इसको इंटरनेट से, मतलब पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए इट रिक्वायर्स ए फ्रंट एंड IP। सो फ्रंट एंड IP इज ए पब्लिक IP थ्रू विच एप्लीकेशन गेटवे विल कनेक्ट विद द इंटरनेट और विद द पब्लिक नेटवर्क, जस्ट लाइक इट्स द सेम थ्योरी लाइक योर एज्योर लोड बैलेंसर। सो वही फ्रंट एंड आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है।
तो यू ऑलरेडी नो अबाउट पब्लिक प्राइवेट बोथ, वही सेम थ्योरी। इंटरनल एप्लीकेशन गेटवे जो है वो हेल्प करेगा हमें इंटरनल लोड बैलेंसिंग में डेटाबेस के सिनेरियो में। अगर हमें दोनों चाहिए तो वी कैन चूज द बोथ सेटअप, तो हमें दो आईपी ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। बट वी वांट टू यूज द पब्लिक एप्लीकेशन गेटवे। हम जो भी यूजर्स बाहर से आते हैं, पब्लिक यूजर्स, उनकी क्वेरी को राउट करना चाहते हैं टू द पर्टिकुलर सर्वर फॉर द लोड बैलेंसिंग, सो हम पब्लिक चूज करेंगे। प्राइवेट के केस में हमें प्राइवेट आईपी यूज करना पड़ता है। बोथ के केस में देखो, यहाँ पे एक पब्लिक आईपी है फ्रंट एंड के लिए और एक प्राइवेट आईपी है इंटरनल एप्लीकेशन गेटवे के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट सेम है जैसे हमारा एज्योर लोड बैलेंसर था। आई विल गो विद द पब्लिक। फिर हमें एक, अगर मेरे पास कोई फ्री पब्लिक आईपी है तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ, बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी फ्री पब्लिक आईपी, सो आई विल क्रिएट ए न्यू फ्रंट एंड पब्लिक आईपी। तो एक नया फ्रंट एंड पब्लिक आईपी क्लिक करके क्रिएट कर लेते हैं। तो आई विल गिव द नेम, लेट्स से PIP ऑफ ऐप GW, मतलब इस तरीके से मैंने कोई नाम दे दिया। क्लिक ऑन ओके। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है बैकएंड्स क्या होगा आपका, मतलब जो आप आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे चल रही है, आपकी वेबसाइट या आपका जो वेब एप्लीकेशन है, वेयर इट इज रनिंग। तो मैंने आपको बताया कि वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, या तो वो मेरे एज्योर VM में हो सकता है या VMSS में, या वो ऑन प्रिमाइसिस सर्वर में हो सकता है, या वो किसी ऐप सर्विस में या ऐप सर्विस स्लॉट में हो सकता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है। क्लिक ऑन ऐड ए बैकएंड पूल, कोई भी नाम दे दो। आई विल गिव BP01 फॉर द बैकएंड पूल। उसके बाद टारगेट, टारगेट मतलब अगर आपको ऑन प्रिमाइसिस में आपकी साइट चल रही है और आपको उसको ऑन प्रिमाइसिस को ऐड करना है, सो यू विल चूज IP एड्रेस और FQDN। अगर आपका जो सर्वर है जिस पे आपकी साइट चल रही है, इफ इट इज एन ऑन प्रिमाइसिस लोकेशन, देन यू विल चूज दिस वन। अगर वो एज्योर के वर्चुअल मशीन पे चल रहा है तो यू विल चूज द वर्चुअल मशीन ऑप्शन। VMSS में है तो VMSS, और अगर ऐप सर्विस जो मैंने बताया उस पे है, देन यू विल चूज द ऐप सर्विस। तो चारों बैकएंड्स यहाँ पे अवेलेबल है। राइट नाउ माई वेब एप्लीकेशन इज होस्टेड ऑन वर्चुअल मशीन, सो आई विल चूज वर्चुअल मशीन, एजोर के VM में है। फिर उसका मैं यहाँ पे नाम चूज करूंगा। सो मेरे दो सर्वर दिख रहे हैं, वेब सर्वर 01 एंड 2। मैं फर्स्ट सर्वर को ऐड कर रहा हूँ, सो आई विल चूज माई फर्स्ट सर्वर हियर। देन फिर मैं अपने सेकंड सर्वर को भी ऐड कर लेता हूँ, वर्चुअल मशीन, देन वेब सर्वर 02। तो दोनों सर्वर मैंने चूज कर लिए, दोनों की प्राइवेट IP यहाँ पे दिखा रहा है 172.16.04 एंड 172.16.05। देन क्लिक ऑन ऐड। सो माई बैकएंड पूल हैज बीन एडेड वेयर आई हैव टू सर्वर्स कनेक्टेड, और ये उनके NIC नेम्स है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेम्स। फ्यूचर में जब कभी भी मेरे को नया बैकएंड पूल ऐड करना हो या एग्जिस्टिंग वाले को डिलीट करना हो, दैट इज डूएबल, हम ऐसा कर सकते हैं। तो एडिटिंग्स आर पॉसिबल। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये हमारे एप्लीकेशन गेटवे के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले जैसे एजोर लोड बैलेंसर में था, रिक्वेस्ट आती है हमारे फ्रंट एंड पे, मतलब यूजर की जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो यूजर हमेशा उसको कहाँ करता है, फ्रंट एंड पे। लेट मी जस्ट गो टू द इमेज टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो यूजर की जब भी रिक्वेस्ट आती है, लेट मी रिमूव दिस एक्स्ट्रा वन, या हट गया, चलो। सो यूजर की जब भी रिक्वेस्ट आती है तो वो किस पे रिक्वेस्ट करेगा, लोड बैलेंसर के फ्रंट एंड पे, मतलब एप्लीकेशन गेटवे के फ्रंट एंड IP के ऊपर। फ्रंट एंड IP मतलब उसके पब्लिक IP पे। फिर जो एप्लीकेशन गेटवे है, एप्लीकेशन गेटवे में हमें रूल सेटअप करना पड़ता है, जैसे हमने लोड बैलेंसर में रूल सेटअप किया था। यहाँ पे कौन सा रूल सेटअप होता है, तो यहाँ पे रूल सेटअप होता है URL बेस्ड राउटिंग का, क्योंकि ये URL के बेसिस पे राउटिंग करता है। तो URL या पाथ बेस्ड राउटिंग हमें यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे में सेटअप करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू दैट रूल जो भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, द इनकमिंग ट्रैफिक ऑफ द यूजर, इनकमिंग जो भी उसने URL एक्सेस करने के लिए भेजा है, उस URL के बेसिस पे वो रूल काम करेगा और वो उसको उठा के उस पर्टिकुलर सर्वर पे फॉरवर्ड कर देगा। तो दिस इज हाउ द फ्लो वर्क्स। सो हियर इफ आई गो टू माय पोर्टल, मेरा फ्रंट एंड IP मैंने रेडी कर लिया है, मैंने फ्रंट एंड ऐड कर दिया है। मैंने बैक एंड में दो सर्वर्स भी ऐड कर दिए हैं, बट अभी हमने कोई रूल ऐड नहीं किया, सो वी हैव टू ऐड द राउटिंग रूल नाउ। सो आई विल क्लिक ऑन ऐड ए राउटिंग रूल, और इसका कोई भी नाम दे दो। आई विल गिव rule-01। देन प्रायोरिटी। सो प्रायोरिटी के लिए यहाँ पे हमें कोई प्रायोरिटी नंबर देना पड़ता है बिटवीन 1 to 20,000, जहाँ पे 1 सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मतलब लोअर द नंबर हाईएस्ट द प्रायोरिटी। तो अगर आपने तीन चार रूल एप्लीकेशन गेटवे पे बना रखे हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव क्रिएटेड 1 2 3 एंड 10, सो 4 रूल्स बने हुए हैं,
तो सबसे पहले इस रूल को चेक किया जाएगा और इसके बेसिस पे क्वेरी को फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर ये रूल काम नहीं करता है या मैच नहीं करता है, देन सेकंड रूल की तरफ बढ़ेगा एप्लीकेशन गेटवे। तो इस वजह से प्रायोरिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका नंबर सबसे कम होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। सो नंबर हैज टू बी बिटवीन 1 to 20,000, जहाँ पे 1 सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है और 20,000 सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो मैं यहाँ पे मिनिमम नंबर दे देता हूँ 1, विच इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एप्लीकेशन गेटवे का, लिसनर। तो लिसनर वही कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट पे वो ट्रैफिक को लिसन करता है। मतलब फ्रंट एंड आईपी जहाँ पे कनेक्टेड होता है एप्लीकेशन गेटवे का, यूजर जब भी यूआरएल सेंड करेगा कि मुझे ये पेज एक्सेस करना है, वो फ्रंट एंड पे जाएगा। फ्रंट एंड पे लिसनर कॉन्फ़िगर होता है। मतलब एप्लीकेशन गेटवे का जो फ्रंट एंड एरिया होता है, देयर द लिसनर विल बी कनेक्टेड। तो लिसनर हमेशा फ्रंट एंड के ऊपर होता है और उसी के ऊपर वो क्वेरी को रिसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर रूल्स के बेसिस पे जो भी रूल्स कॉन्फ़िगर्ड है उस यूआरएल को चेक करता है। यूआरएल में इमेजेस मांगा है तो इमेज के सर्वर पे, वीडियोस मांगा है तो वीडियो के सर्वर पे फॉरवर्ड करता है। तो लिसनर्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन गेटवे। तो हमें लिसनर सेटअप करना है। तो लिसनर का कोई भी नाम मैंने दे दिया, list-01। फिर आपसे फ्रंट एंड आईपी पूछ रहा है कि आपका लिसनर कहाँ पे है। तो लिसनर हमेशा मैंने बताया फ्रंट एंड आईपी पे होता है। तो फ्रंट एंड आईपी यहाँ पे इसने चूज कर लिया अपने आप, पब्लिक आईपी वर्जन 4। मेरी साइट एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे चल रही है तो एचटीटीपी लिसनर बनेगा। अगर मेरे पास एचटीटीपीएस की साइट होती देन एचटीटीपीएस का लिसनर बनेगा ऑन पोर्ट नंबर 443। राइट नाउ आई हैव एचटीटीपी साइट। मेरी जो भी साइट्स सर्वर पे होस्टेड है वो एचटीटीपी में एक्सेस हो रही है, तो 80 हमारा लिसनर पोर्ट नंबर है ऑन एचटीटीपी। उसके बाद लिसनर के टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स के लिसनर होते हैं, बेसिक एंड मल्टी साइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, बेसिक एंड मल्टी साइट। बेसिक हम तब यूज करते हैं जब हम सिंगल डोमेन के लिए काम कर रहे हैं। मल्टी साइट हम तब यूज करते हैं जब हम मल्टीपल डोमेन के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपका आपका जो सर्वर है, आपके जो बैकएंड सर्वर है, अभी उस पे एक ही डोमेन की साइट होस्टेड है, contoso.com। बट मान लो अगर मेरे पास मल्टी डोमेन होता, फॉर एग्जांपल एक और डोमेन होता फॉर abc.com। तो दो डोमेन की साइट्स मेरे सर्वर्स पे होस्टेड है। अब जो यूजर्स है, यूजर दो तरीके से आ सकते हैं। या तो यूजर आएगा विद द रिक्वेस्ट ऑफ लेट्स से contoso.com स्लैश उसको चाहिए इमेजेस स्लैश डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल का पेज। या तो फिर यूजर आ सकता है abc.com की साइट एक्सेस करने के लिए, सो abc.com स्लैश उसको चाहिए वीडियोस का डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल का पेज। सो अगर मल्टी साइट है तो मल्टी यूआरएल्स की रिक्वेस्ट आ सकती है अलग अलग डोमेन पे। तो उस केस में हमें मल्टी साइट वाला लिसनर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इफ इट इज अ सिंगल डोमेन, जैसे हमारे केस में इट इज अ सिंगल डोमेन क्वेरी, तो वहां पे बेसिक रहेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस विल बी योर इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड मल्टी साइट लिसनर? सो बेसिक will only listen for a particular domain, and multi-site is configured when we have multiple domains to listen. तो अभी हम बेसिक पे हैं। अगर आपको कोई एरर पेज कॉन्फ़िगर करना है, जैसे बैड गेट पे आ गया तो कोई एरर पेज यहाँ पे आप उसका पाथ दे दो तो वो वाला पेज खुल जाएगा। जैसे आजकल फ्लैशी फ्लैशी पेज खुलते हैं कंपनी में, देखा होगा एआई के थ्रू रोबोट्स बना देते हैं कि पेज एक्सेस नहीं हो रहा, उप्स द पेज इज नॉट अवेलेबल। सो इफ यू वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे आप पेज का यूआरएल कोड करके डाल सकते हो, वही पेज एक्सेस होगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट पेज होता है, जैसे अगर कोई एरर आ गया बैड गेट पे, यूआरएल सही नहीं है तो 502 का एरर देगा। अगर आपको परमिशन नहीं है तो 403 का फॉरबिडन एरर दे देगा। बट अगर आप कोई फ्लैशी पेज दिखाना चाहते हो देन यू कैन एंटर द यूआरएल हियर। तो HTML की कोडिंग करके आपको यूआरएल बना के एक पेज बनाना पड़ता है। बट फिलहाल आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी पेजेस। ये सब कोडिंग करने का काम अगेन द डेवलपमेंट टीम विल प्रोवाइड मी द पेज, देन आई कैन एंटर इट अगर रिक्वायरमेंट है तो। तो लिसनर की सेटिंग्स होने के बाद वी हैव टू सेट द बैक एंड टारगेट्स। कि अगर कोई क्वेरी लिसनर पे आती है, मतलब फ्रंट एंड पे अगर किसी यूजर ने कोई यूआरएल भेजा, तो लिसनर उसको रिसीव करेगा इनकमिंग ट्रैफिक को। फिर वो रूल्स चेक करेगा, जो रूल्स मैं सेट कर रहा हूँ अभी, उस रूल्स के बेसिस पे वो क्या करेगा, बैकएंड में फॉरवर्ड करेगा। सो हमने लिसनर डिटेल्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है रूल्स के अंदर। अब हमें बैकएंड की क्वेरी कहाँ पे जाएगी तो वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। सो वी हैव टू गो टू द बैकएंड टारगेट्स, और यहाँ पे टारगेट टाइप हमारा बैकएंड पूल, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आए उसको बैकएंड में भेजा जाए। और बैकएंड में किस पे, बैकएंड पूल 01 पे, जो अभी मैंने BP01 बनाया है उस पे भेजा जाए। और बैकएंड की सेटिंग्स का मतलब है रूल।
कि कैसे वो क्वेरी वहां पे ट्रांसफर होगी। सो राइट नाउ देयर इज नो रूल, सो यू हैव टू ऐड ए न्यू रूल। सो ऐड न्यू पे क्लिक करो और एक रूल बना दो। आई विल गिव रूल -01। तो HTTP की कोई भी रिक्वेस्ट आती है, मतलब कोई भी यूजर अगर बोलता है कि मेरे को HTTP की साइट एक्सेस करनी है, उसके URL में HTTP है, जैसे या तो HTTP होगा या HTTPS होगा। हमारे केस में इट इज HTTP। सो HTTP की अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो बैकएंड में फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रूल नेम दिया, HTTP सेलेक्ट किया। अगर HTTPS होता तो HTTPS चूज करता, देन क्लिक ऑन ऐड। ये सब सेटिंग्स डिफॉल्ट रहेगी। ऐड। तो बैकएंड सेटिंग भी मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दी। नाउ यू हैव टू डिफाइन द पाथ। अब आपको पाथ डिफाइन करना है कि कंटेंट पे, यूआरएल पे क्या लिखा होगा तो कहाँ कहाँ पे फॉरवर्ड होगा। तो मेरे पास दो यूआरएल है, एक तो इमेजेस का और एक वीडियोस का। सो मैं यहाँ पे पाथ बेस्ड रूल बनाऊंगा, इसी के बेसिस पे एप्लीकेशन गेटवे स्मार्ट राउटिंग करेगा। सो ऐड मल्टीपल टारगेट्स टू क्रिएट ए पाथ। देन यहाँ पे आपको पाथ डिफाइन करना है। सो स्लैश, अगर मेरे यूआरएल में या यूजर के यूआरएल में इमेजेस लिखा हुआ है, इफ द इमेजेस आर मेंशन्ड देयर, देन स्लैश, फिर मेरी साइट का नाम है default.html। तो अगर यूजर के यूआरएल में ये लिखा हुआ है कहीं पे भी, तो उसको इमेजेस वाले पे भेजो। बट कंपनीज में क्या हो सकता है, इस इमेजेस वाले फोल्डर में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। जैसे मेरे केस में अभी मैंने एक ही कोड रखा है यहाँ पे, सी, इमेजेस वाले फोल्डर में एक ही कोड है default.html। बट कंपनी के केस में इमेजेस फोल्डर में मल्टीपल कोड्स हो सकते हैं। तो इस वजह से अगर आपने यहाँ default.html लिख दिया, स्लैश लगा के, इमेजेस लगा के, देन इफ यू विल मेंशन default.html, तो यूजर का सिर्फ यही वाला पेज एक्सेस हो पाएगा। बट अगर वहां पे उस सेम फोल्डर में मल्टीपल पेजेस रखे हुए हैं कोड्स के, आप चाहते हो एज पर द रिक्वायरमेंट सारे के सारे पेज एक्सेस होने लगे, जो भी वो एक्सेस करना चाहता है, सो डोंट मेंशन द साइट नेम। आप इसको हटा के यहाँ पे एस्ट्रिक या स्टार मेंशन करोगे, मतलब डिफॉल्ट। इसका ये मतलब है कि यूआरएल में इमेजेस लिखा हुआ है, उसके आगे साइट नेम कुछ भी हो सकता है, बट उस यूजर को एक्सेस करवाया जाए। साइट नेम कैन बी एनीथिंग, बट यूजर को एक्सेस करवाया जाए। मतलब मेरा यूआरएल यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा यूआरएल हमने यूज किया हमारा आईपी स्लैश इमेजेस स्लैश साइट का नाम default.html। तो हो सकता है default.html ना होके मेरी फाइल का नाम था index.html, तो कुछ भी नाम हो, स्टार मैंने इसलिए मेंशन किया इस जगह पे ताकि वो एक्सेस करवाया जाए। तो एस्ट्रिक या स्टार मीन्स whatever is there after the images, everything should be accessible। तो इसलिए हम स्टार ही देते हैं। फिर टारगेट का नेम दे देना है आपको कुछ भी। तो टारगेट के नेम के केस में जो है, मैं रूल नंबर 1 के साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने रूल सेटअप किया बैकएंड का, और टारगेट नेम मैंने दे दिया, लेट्स से कि वो जाए वेब सर्वर। कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है सर्वर नेम देना है। मैंने वेब सर्वर 01 दिया क्योंकि उसमें मेरी इमेजेस चल रही है। उसके बाद बैकएंड टारगेट, मतलब बैकएंड का नाम क्या है, सो BP01। BP01 का जो सर्वर, दो सर्वर है उस पे, वो सर्वर जिस पे हमारा इमेजेस डली हुई है, अगर इमेज मैच हो गया जैसे इस पे, तो इस सर्वर पे भेजा जाए। तो ये अपने आप ही उसको चेक कर लेगा किस सर्वर पे इमेजेस की साइट चल रही है, बिकॉज इट इज स्मार्ट। तो मैंने पूरा बैकएंड पूल यहाँ पे ऐड कर दिया। जिस सर्वर पे इमेजेस वाला यूआरएल होगा उस पे अपने आप ही ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। क्लिक ऑन ऐड। नाउ वी हैव टू ऐड द सेकंड पाथ, जो कि होगा वीडियोस के लिए। सो क्लिक अगेन ऐड मल्टीपल पाथ्स, और यहाँ पे स्लैश, किसी के भी यूआरएल में अगर वीडियोस, चेक करता हूँ मैं किस नाम से फोल्डर है। फोल्डर है हमारा www रूट में वीडियोस के नाम से। ओके, तो वीडियोस नाम से, तो वीडियोस किसी के भी यूआरएल में हुआ, स्लैश साइट का नाम चाहे कुछ भी हो, स्टार, टारगेट नेम वो जाना चाहिए वेब सर्वर 02 पे। तो मैंने यहाँ पे सर्वर का ही नाम दे दिया, बाकी आप कुछ भी नाम दे सकते हो। किस बैकएंड सेटिंग्स के बेसिस पे काम करेगा वो काम करेगा रूल नंबर 1 जो अभी मैंने बनाया था। मतलब 80 नंबर की रिक्वेस्ट आई तो 80 नंबर पे फॉरवर्ड किया जाए। और हमारा बैकएंड कौन सा होगा, तो बैकएंड होगा BP01, बैकएंड पूल 01, जिसमें मेरे दो सर्वर है। तो मेरा वेब सर्वर 02 जिसके ऊपर वीडियोस चल रही है, अपने आप ये उसको मैच करेगा और वहीं सर्वर पे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा हमें कोई स्पेसिफिक सर्वर ऐड करने की जरूरत नहीं है। सर्वर को ही अपने आप आइडेंटिफाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, बिकॉज इट इज स्मार्ट लोड बैलेंसर। क्लिक ऑन ऐड। तो मेरे दोनों पार्ट डिफाइन हो गए, मेरा पूरा रूल बन चुका है, मेरा लिसनर ऐड हो चुका है। नाउ आई विल जस्ट क्लिक ऑन ऐड। सो मेरा फ्रंट एंड ऐड हो चुका है, राउटिंग रूल्स ऐड हो चुके हैं। दीज आर चेंजेबल, डिप्लॉयमेंट के बाद भी चेंज हो सकता है। बैक एंड पूल मेरा ऐड हो चुका है BP01 के नाम से। नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट।
कोई टैग्स ऐड करने हैं सो यू कैन, अदरवाइज क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। और यहाँ पे देखो ये अवेलेबिलिटी जोन 3 कॉपी बना रहा है मेरे एप्लीकेशन गेटवे की, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड वर्जन 2 सेलेक्ट किया था और उसमें अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन हमने चूज किया था, तो ये 3 कॉपी बना रहा है अलग अलग डेटा सेंटर्स में, जो कि आपको तीन एक साथ दिखाई नहीं देगी। इफ वन इज डाउन सो दूसरा जो एप्लीकेशन गेटवे दूसरे डेटा सेंटर पे है, ट्रैफिक उस पर अपने आप स्विच कर देगा माइक्रोसॉफ्ट। सो दैट इज फॉर देयर फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी। तो आपको तीन के चार्जेस नहीं मिलेंगे, यू विल बी चार्ज फॉर ओनली वन। So let's wait for the deployment to be completed. Okay, so now you can see the deployment is done for the application gateway. So it got started on this particular timing. Now it took around 15 or more minutes for the deployment. Now let's see. So now let's go to the application gateway and you will see I have one app gateway ready now. एक application gateway हमारा ready हो चुका है, and if you just click on this तो यू विल फिगर आउट द डिटेल्स। यहाँ पे हमें डिटेल्स दिखेगी, जैसे किस वीनेट का पार्ट है, सो इट इज द पार्ट ऑफ वीनेट 01। और ये किस सबनेट में है, सो ये इस वाले सबनेट के अंदर है, एंड ये इसका पब्लिक आईपी है, द फ्रंट एंड आईपी सी। और इसका टीयर हमने स्टैंडर्ड V2 दिया हुआ है, एंड अवेलेबिलिटी जोन, सो ये 3 कॉपीज में चल रहा है यूके साउथ के अंदर। ऑन द लेफ्ट साइड इफ यू गो, सेटिंग्स के अंदर आप देख पा रहे हो अंडर द कॉन्फ़िगरेशन टियर इज स्टैंडर्ड V2, बट इन केस आई वांट टू डाउनग्रेड, सो बेसिक में जाना चाहूँ तो मैं सेव करके बेसिक में जा सकता हूँ। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एक अलग चीज़ है, वो फायरवॉल के फंक्शन पे काम करता है, तो हम बाद में समझेंगे। बाकी आप उसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ऑटो स्केलिंग फिट करनी है जैसे VMSS की तरह, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट, इफ यू वांट टू मेक इट द पार्ट ऑफ ऑटो स्केलिंग फॉर हाई अवेलेबिलिटी, तो आप ये चूज करके काउंट डिफाइन कर सकते हो। अभी फिलहाल ये मैनुअल है। HTTP वर्जन 2 इज इनेबल्ड। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यहाँ से मैनेज होता है, लेफ्ट साइड पे आप ऑप्शन देख पा रहे हो। अभी फिलहाल हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। बैक एंड पूल में हमारे पास 2 सर्वर्स कनेक्टेड है। इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस सो यू विल सी द डिटेल्स ऑफ दिस 2 सर्वर्स, वेब सर्वर 01 एंड 2 और उनके आईपीस। इसको भी अगर आपको एडिट करना है तो आप कर सकते हो, नया बैकएंड पूल ऐड करना है सो यू कैन ऑलवेज डू इट। आप इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हेल्थ चेकअप के लिए इसके पास अपना एक खुद का हेल्थ प्रोब है। जस्ट लाइक इन एज्योर लोड बैलेंसर, वहाँ पे हमें हेल्थ प्रोब क्रिएट करना पड़ता था, बट यहाँ पे इसका अपना खुद का एक हेल्थ प्रोब है विच विल चेक द हेल्थ ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाएगा इनकी हेल्थ का स्टेटस क्या है। देखो, तो यहाँ पे अलग से हेल्थ प्रॉप बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे एजुअल लोड बैलेंसर में थी। यहाँ पे अपने आप ही हेल्थ प्रॉप काम करता है एंड इट विल शो यू द हेल्थ ऑफ ऑल द बैकएंड पूल्स। तो ये बता रहा है कि हमारे 2 सर्वर है। देखो, ये इसका प्राइवेट आईपी है, ये वेब सर्वर 01, वेब सर्वर 02। 8080 नंबर पे इस पे पोर्ट्स पे वेबसाइट्स कॉन्फ़िगर्ड है। तो वेबसाइट्स की हेल्थ हमारी हेल्दी है, तो दे आर हेल्दी। इन्होंने इसको एक सिग्नल भेजा और वहां से पैकेट रिसीव हो गया। जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इन द लोड बैलेंसर की हेल्थ प्रॉप कैसे काम करता है, तो वो एक सिग्नल भेजता है, एंड इफ द रिस्पॉन्स कम्स बैक फ्रॉम द बैकएंड पूल तब वो उसको हेल्दी डिक्लेयर कर देता है। तो यहाँ पे भी हेल्दी है। अगर कोई सर्वर आप बंद कर देते हो या फिर सर्वर में कोई इशू है तो यहाँ पे उसको वो अनहेल्दी डिक्लेयर कर देगा आफ्टर सम इंटरवल। तो इसमें बैकएंड पूल ऑलरेडी होता है। बाकी बैकएंड सेटिंग्स जो हमने करी थी ये वही रूल है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्लिक करके एडिट कर सकते हो। सो एनी टाइम इफ यू फील यू कैन मेक द एडिट। फ्रंट एंड आईपी विच इज द पब्लिक आईपी ऑफ द एप्लीकेशन गेटवे, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी आईपी पे सारा ट्रैफिक आता है ऑन लिस्टनर नंबर 01। सो लिस्टनर नंबर 01 हमने बनाया था लिस्ट 01 के नाम से, उसी पे सारा ट्रैफिक इस फ्रंट एंड पे आता है, और इस रूल के बेसिस पे, इस बैकएंड रूल के बेसिस पे वो बैकएंड पूल पे फॉरवर्ड हो जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड ऑप्शंस है जैसे प्राइवेट लिंक, ये हम आगे जाके कभी डिस्कस करेंगे। SSL सेटिंग्स आर रिलेटेड फॉर द SSL सर्टिफिकेट। अगर आप चाहते हो आप किसी वेब एप्लीकेशन को HTTPS में होस्ट करना, तो SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड करके HTTPS में ऐड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे लिसनर्स हमारे जो हमने क्रिएट किया था, देखो लिस्ट 01 पोर्ट नंबर 80 पे HTTP के लिए, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इफ यू क्लिक ऑन दिस तो आपको फर्दर डिटेल्स दिखाएगा जो हमने उस टाइम पे सेटअप करी थी। आपको इसमें चेंजेस करने हैं, यू कैन ऑलवेज मेक द एडिट। तो कभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं, जो रूल हमने बनाया था।
दैट रूल इज ऑल्सो हेयर, उसकी भी बैकएंड हेल्थ आप चेक कर सकते हो। रीराइट्स इज अ डिफरेंट टॉपिक, दिस इज रिलेटेड टू द कस्टम हेडर इन द पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन, जो एक डेवलपमेंट का पार्ट हो गया एक तरीके से, कि अगर डेवलपर चाहता है कि हेडर हमारे कोई दूसरे शो हो, तो वी कैन राइट द रीड राइट रूल्स। बाकी ये हेल्थ प्रॉप, आप चाहे तो मैनुअल हेल्थ प्रॉप भी इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे एक तो हेल्थ प्रॉप बाय डिफॉल्ट है इसमें, बट इफ़ यू वांट योर कस्टम हेल्थ प्रॉप जो आपके टाइम के हिसाब से हेल्थ चेक करते रहे, तो आप ऐड करके यहाँ पे उसका नाम देके देन पाथ दे दो अपनी साइट्स का, जैसे स्लैश इमेजेस स्लैश स्टार और अपना होस्ट, देन उसके बाद टाइमिंग्स देके आप इसको सेट कर सकते हो। सो टाइम इंटरवल 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी आपको देना है, दैट विल बी योर कस्टम टाइमिंग। अदरवाइज आप हेल्थ प्रॉप नहीं भी क्रिएट करते हो, तो मैंने अभी आपको दिखाया कि इस पे अपना खुद का हेल्थ प्रॉप होता है। बाकी ये प्रॉपर्टीज ऑप्शंस एंड एवरीथिंग, सो एवरी ऑप्शन इज एडिटेबल, सारे ऑप्शंस यहाँ पे एडिटेबल है, हम उनको चेंजेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट, तो ये कैसे काम करेगा। सो यूजर को, लेट्स से दिस इज माय फ्रंट एंड आईपी ऑफ द एप्लीकेशन गेटवे, इस फ्रंट एंड आईपी से रिक्वेस्ट करेगा यूजर। मैंने इसको पेस्ट किया अपने ब्राउजर पे, देन स्लैश, मान लो मेरे पास एक कस्टम यूआरएल है, स्लैश उस पर लिखा हुआ है इमेजेस, स्लैश मेरी साइट का नाम है default.html। सो मैंने इस यूआरएल से रिक्वेस्ट रेस की, एंटर। तो ये मेरे को एप्लीकेशन गेटवे कहाँ भेजेगा इसको, अब वो उसको भेजेगा इमेज वाले सर्वर पे। सी, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। मतलब मैंने कस्टम यूआरएल के थ्रू, इमेजेस मेरे कंटेंट में है यूआरएल के, मैंने रिक्वेस्ट रेस की टू द एप्लीकेशन गेटवे, ये एप्लीकेशन गेटवे का फ्रंट एंड आईपी है, तो ये इसको कहाँ राउट कर रहा है, इमेजेस वाले सर्वर पे, जिस सर्वर पे इमेज वाला कोड है, विच इज वेब सर्वर 01। और सिमिलरली अगर मैं वीडियोस वाले यूआरएल को हिट करूंगा, जैसे मेरे यूआरएल में अगर वीडियोस है, तो कोई भी यूजर जो वीडियोस यूआरएल को हिट करता है, तो उसकी क्वेरी कहाँ ट्रांसमिट होनी चाहिए, वीडियोस सर्वर पे। सी, तो इट इज गोइंग टू द सर्वर वेयर द वीडियो वेब पेज इज होस्टेड, विच इज वेब सर्वर 02। सो मेरा एप्लीकेशन गेटवे प्रॉपरली काम कर रहा है। अब प्रोडक्शन सिनेरियो में क्या होगा, वहां पे हम आईपी के थ्रू रिक्वेस्ट रेज नहीं करते हैं एप्लीकेशन गेटवे को, हमें यहाँ पे कस्टम डोमेन नेम मैप करना पड़ता है, जो मैंने आपको लोड बैलेंसर में भी दिखाया था। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट गो टू द पोर्टल, सर्च फॉर द पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि ऐसे अपने लोड बैलेंसर का आईपी या एप्लीकेशन गेटवे का आईपी उठा के हम शेयर नहीं करेंगे। एंड पब्लिकली पीपल कैन नॉट रिमेंबर द आईपीज, दे ओनली रिमेंबर द यूआरएल्स और नेम्स। तो पब्लिक आईपीज में जाना है हमें, और ये आईपी हमारा एप्लीकेशन गेटवे का है जो हमने बनाया था, और ये हमारे दो सर्वर्स के आईपी है। सो गो टू द एप्लीकेशन गेटवे आईपी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो पब्लिक आईपी है, पी आई पी ऑफ ए पी डब्ल्यू, ये कनेक्टेड है हमारे ऐप गेटवे 01 के साथ। तो यहाँ पे ये इसका पब्लिक आईपी भी देख पा रहे हो आप, इट इज द सेम आईपी। हमें क्या करना है, वी हैव टू गो टू द सेटिंग्स, गो टू द कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे जो भी हमारा डीएनएस नेम है उसके साथ आप इसको बाइंड कर दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया ऐप गेटवे साइट टेस्ट, एंड दैट हैज टू बी ए यूनिक नेम, सो ये नेम अवेलेबल है। कंप्लीट यूआरएल क्या होगा, ऐप गेटवे साइट टेस्ट डॉट यूके साउथ डॉट क्लाउड ऐप डॉट एजोर डॉट कॉम। कंपनी के अपने खुद के कस्टम डोमेन्स होते हैं, तो वो कस्टम डोमेन्स ऐड करते हैं यहाँ पे यूजिंग द एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, बट वी आर यूजिंग द फ्री डोमेन्स। तो बाय डिफॉल्ट ये हमें फ्री डोमेन में इस तरीके का डोमेन प्रोवाइड करेगा। देन क्लिक ऑन सेव। अब सेव करने के बाद आई डोंट हैव टू एंटर द आईपी ऑफ एप्लीकेशन गेटवे नाउ। मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा पब्लिक आईपी का यूआरएल लूंगा यहाँ से मैं, आई विल कॉपी द डीएनएस नेम, सो लेट्स वेट फॉर इट टू कम, या इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। नाउ यू कैन सी द यूआरएल, इसको मैं कॉपी करूंगा और इनको रिमूव करते हैं। अब यूजर इस तरीके से एक्सेस करेगा द यूआरएल, देन स्लैश, उसको कस्टम यूआरएल है उसके पास इमेजेस वाला, सो ही विल पुट डाउन द इमेजेस, देन डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल, एंटर। तो अब हमारा इमेजेस वाला पेज एक्सेस होगा वेब सर्वर 01 से। एंड सिमिलरली अगर किसी यूजर के पास ये वाला यूआरएल है जहाँ पे वीडियोस होस्टेड है कस्टम यूआरएल में, तो उसकी क्वेरी को एप्लीकेशन गेटवे कहाँ ट्रांसफर करेगा, वीडियोस वाले सर्वर पे। तो लेट मी रिफ्रेश इट वंस मोर टाइम, सी। तो इस तरीके से एप्लीकेशन गेटवे काम करता है। अब अगर मेरा बाय चांस मेरे पास सिर्फ एक ही सर्वर है, जैसे यहाँ पे मेरे सिनेरियो में मेरे पास एक ही सर्वर है जहाँ पे वीडियोस है, और एक ही सर्वर है जहाँ पे इमेजेस है, तो अगर मेरा वीडियोस वाला सर्वर में कोई टेक्निकल इशू आता है या फिर ये सर्वर बंद हो जाता है, तो उस केस में जिस यूजर ने वीडियोस वाली क्वेरी करी है उसकी रिक्वेस्ट पे एरर आएगा, क्योंकि मेरे पास सेकंड सर्वर नहीं है जहाँ पे वीडियोस का पेज है। तो वो वेब पेज इज नॉट अवेलेबल का एरर देगा, क्योंकि ये सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है।
बट अगर मेरे पास दो सर्वर होते जहाँ पे वीडियोस के कोड डले होते, तो एक सर्वर काम नहीं कर रहा था तो दूसरे सर्वर पे लोड को फॉरवर्ड कर देता हमारा एप्लीकेशन गेटवे। तो अभी फिलहाल मैंने एक एक सर्वर्स लिए थे यहाँ पे। सो इन केस वन ऑफ द सर्वर इज नॉट अवेलेबल, दैट पर्टिकुलर यूआरएल विल नॉट फंक्शन, क्योंकि वो कोड ही उस पर्टिकुलर सर्वर पे है। तो ये एज्योर लोड बैलेंसर की तरह नहीं है कि उठा के किसी दूसरे पे कर देगा। ये दूसरे पे तब करेगा जब दूसरे सर्वर पे भी सेम पेज कॉन्फ़िगर्ड होगा। सो दिस इज, somehow we can say, this is one of the intelligent load balancing solution that we discussed. So this was the complete implementation of application gateway load balancer. Now we are done with this topic. We have successfully seen how to implement this, इसके क्या क्या components है, इसका क्या use case है, इसका क्या concept है, हमने सब कुछ समझ लिया. Still, in case during the deployment, if you face any kind of challenges, so you can drop a comment into the chat box, or you can just drop me an email, then I can help you out in that case. So if you like this video, do subscribe the channel and hit the notification bell icon for the further videos. For now, we can wrap up this session. So thank you very much for your timing to be on the channel. Let's connect in the next session. Bye.